Doctor, as a female vice chancellor of a STEM university, what challenges you have faced so far? Let me tell you, this word female. I usually, have reservations using this so often because I don't consider that profession should have this gender discrimination. And we have to kill this discrimination within us first. When you were joining this university, आपका क्या vision था? कि what would you be doing during that tenure? How far you have been able to accomplish? कितना आप कामयाब रही हैं? और हमारे पास कौन सा चैलेंज है जो नहीं था टू बिगेन विद. फिर ओवर एम्प्लॉयमेंट के इशूज़ थे हमारे, डेफिसिट्स एंड लाइबिलिटीज़ अलग थी, स्टूडेंट डिसिप्लिन अलग था, एकेडमिक डिसिप्लिन भी अलग था, और फिर मेरिट, जो स्टूडेंट मेरिट की मैं बात कर रही हूँ, एग्जामिनेशन में आई रिमेंबर व्हेन आई ज्वाइन तो मुझे पता चला कि 411 रिजल्ट अभी तक अनाउंस ही नहीं हुए हैं. What you or other universities are doing to make youth future ready or more accurately future proof? जो फ्यूचर है ना वो स्किल का है. डिग्री तो आपका सिर्फ पहला एक पासपोर्ट है, उस पर जो आपको जॉब का वीज़ा है ना वो आपकी वो स्किल सेट है जो प्रूवन हो. ये नहीं कि मैं कहूँ कि जी आई कैन कुक, आई हैव टू हैव सम इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दैट आई एम अ शेफ. सरकार यूनिवर्सिटीज़ को भी स्कूल्स की तरह, पीले स्कूलों की तरह क्यों चलाना चाहती है? बट किसी एक की ख़ता का गुनाह दूसरे को नहीं मिलना चाहिए. हमारे यहाँ क्या होता है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोई एक दो यूनिवर्सिटीज़ अगर कोई मैल प्रैक्टिस करती हैं तो हम पैनाडोल से इलाज करने के बजाय सर काटने को मुनासिब समझते हैं कि ईजीएस्ट ऑफ ऑल इज़ दिस कि जी बैन कर दो सबको. How should the university of the future in Pakistan look like in 2050, for example? आप अगर समझते हैं कि यूनिवर्सिटी का काम खाली नॉलेज बेस में एडिशन करना है तब तो ठीक है, आप कह लें कि एआई पढ़ा देगा और फलाना से काम चल जाएगा. बट मैं फिर ये कहती हूँ कि एआई को प्रॉम्प्ट कौन करेगा? अ ह्यूमन बीइंग. And take it as an opportunity rather than a... कि व्हेन टू स्टॉप यूजिंग एआई और चैट जीपीटी और समथिंग लाइक दैट. मैंने कहा द मोमेंट आई फील कि दिस इज एक्चुअली डिमिनिशिंग माई ओन नेचुरल स्किल, आई वुड स्टॉप यूजिंग इट. or parents? तो ये थोड़ा सा पेरेंट्स को याद रखना चाहिए कि ना स्कूल में ना अब जमा ना करा कर आ जाएं. अब बच्चे जमा करा के आ जाते हैं लोग स्कूल में. सही. जैसे हम बैंक में पैसे जमा करा के भूल जाते हैं ना, उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी बैंकर की जिम्मेदारी है, तो अब बच्चों को जमा करा के आ जाते हैं लोग, दाखिला नहीं कराते. तो वो जमा ना कराएं, वो बच्चा आप ही का है, वापस आप ही के पास आना है. Dr. Samreen Hussain, she has a lot of introductions, बहुत से हवाले हैं उनके. She is the Vice Chancellor of an engineering university. This is her third university. Besides, she is an academic, scholar, administrator, engineer. Welcome, Dr. Samreen Hussain. थैंक्स फॉर हैविंग मी. Doctor, as a female Vice Chancellor of a STEM university, what challenges you have faced so far? Let me tell you, this word female. I usually, have reservations using this so often because I don't consider that profession should have this gender discrimination. And we have to kill this discrimination within us first. Because when I'm embarking on a journey, I have to forget my gender first. Otherwise, I won't be a true professional. I would be trying to look at this side and will try to take whatever advantage I can. So first, this that I don't consider myself when I'm a vice chancellor. Challenges, it's not about STEM university. Challenges are, everywhere. No matter if I had Begum Nuzhat Bhutto Women University or if I had Aurora University or a STEM university. Yes, it was somehow or the other unsaturated thing that there was no female in last 77 years who could head any UET, and I got this opportunity by grace of Allah Almighty. So that's why it is extra highlighted. Otherwise, this is nothing different, let me tell you this. And originally in our society, what we feel that, engineering was a male-dominant profession initially, but not anymore. Since, with the evolution of so many good norms that are hitting our society, we always look at the bad side of it. But there is a positive side of it. You can see women coming in almost every profession, you name it. So probably, I'm present in a better era
where male are more, what do I call, receptive towards a female, and the glass ceiling that we used to heard when we were children and we were growing up. There is a glass ceiling, but I think that glass is to be broken still. अब जब हम आपके बारे में सुनते हैं तो कुछ अल्फाज एडजेक्टिव्स आपके बारे में आते हैं, हार्ड वर्किंग हैं, हार्ड टास्क मास्टर हैं, एंड ट्रूली प्रोफेशनल एज वेल. सो फार यहाँ पे दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में कौन से ऐसे टफ डिसीजंस थे which were testing for you as well and you have taken which have made all the difference during your tenure? Rafiq Saab, to be honest, enforcing law is always very difficult. May it be a street, or may it be a university, or may it be any government department, because nobody wants to follow law. Even if you talk about America or England, the people are not very good there. They're just scared and fearful of the law. तो हम अगर law के implementation की बात करें, yes, enforcing policies was very difficult and challenging for me. I didn't invent anything as a new policy or something. Yes, I tweaked some, I improvised some, something I presented with my own renditions, but it's not a altogether, revamping of the complete statute. It was there, but it was not completely implemented or executed, or you can say कि enforcement नहीं था. उसको सबसे बड़ा challenge वही था कि whatever written in the book has to be implemented. उसके ऊपर shift करना लोगों को कि go by the book, follow the policy, follow the documented policy, approved policy, so that we can, behave same across the board. And this is the key to the harmony. Unless you have harmony in your system, you can't achieve whatever you want to achieve. So first you have to bring in that harmony, that confidence that everybody will be treated on the merit. So that was a big challenge, because हमें आदत होती है किसी को स्पेशल बनने की और किसी की वजह से किसी को स्पेशल बनाने की और ट्राइब्स बनाने की हमें आदत होती है. अब मुझे बड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि एकेडमिक्स में भी ये बड़ी तेज़ी से इन्फेक्शन फैला है कि यहाँ भी ट्राइब्स बनना शुरू हो गए. हम तो सुनते थे कि पॉलिटिकली होते हैं शायद, बट एकेडमिक्स में भी होता है. बट आई ट्राई टू किल इट with the implementation of the policies, because a no within the policy is no for everyone. Yes within the policy is yes for everyone, and that is why you won't see many people around me कि मुझे वो चापलूस ग्रुप कभी चाहिए ही नहीं था, तो अभी है भी नहीं. सही. अच्छा, एक डिबेट रहती आई है इन पाकिस्तान स्पेशली कि वाइस चांसलर की जो पोजीशन है, वेदर इट्स एकेडमिक पोजीशन, इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, दोज ग्रुप्स हैव बीन एडवोकेटिंग देयर केस. और आई वाज वंडरिंग कि एक वाइस चांसलर का जो टाइम है किस तरह गुजरता है इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़, डिसीजन मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज एकेडमिक एक्टिविटीज़. आप किस तरह बैलेंस करती हैं, मोर ओवर व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि एकेडमिक रिगर और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर्स को किस तरह बैलेंस करती हैं? हाउ डू यू डिवाइड योर टाइम एंड अटेंशन? वेरी गुड क्वेश्चन. फर्स्ट आई मस्ट से कि इट्स अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि एक एकेडमिक सेटअप में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं. बट यू नो व्हाट, के हमारे पास जो स्टैचुरी फ्रेमवर्क है इसमें ऑटोमेटिकली डिवाइडेड है हमारा एकेडमिक रिगर को भी मेंटेन करना और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा साइड है उसको पॉलिश भी करना और उसको शोकेस भी करना, दोनों सूरतों में आई वुड से. तो फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम हेडिंग अ सिंडिकेट, सो इट्स नॉट जस्ट कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रपोजल्स पुट फोर्थ करने हैं टू बी डेलिबरेटेड. आई हैव सम एकेडमिक्स थिंग ऑल्सो, बिकॉज आई हैव वन स्टैचुरी बॉडी नेम्ड एकेडमिक काउंसिल. Then we have advanced study and research board. ठीक है? So there I bring my academic side in front and take decisions accordingly. And then when it comes to finance planning and committee, when it comes to syndicate, agenda pertinent to administrative decisions, then there I apply my administrative thoughts. But if you say कि if I can have 8 hours in a day, how many do I spend in administration and how many can I, actually give to the academic side? I must say that academic side for the vice chancellor is not the classroom teaching. I have to actually oversee how the classroom teaching is actually
being performed by my faculty. And there are so many tools that I can do these days after digitalization. You know, the feedback, emails of the student, it is like a complaint box for me because I'm accessible to each and every student. They can write directly to me, and at times they are, you know, actually writing just कहना चाहिए fake things. At times they are very pertinent and very logical, and I have to give heed to their you know, reservations and observations. And no matter what, I forward the concerned email to the concerned quarter, and then I want them to apprise me. So this is the confidence that I have seen in my students. Now my classroom teaching has been improved because they know that every student will talk to the Vice Chancellor about the quality of teaching. So this is one. Good. Number two, when we, you know, actually head the academic council, how we do it or how I do it, we look into the things like it doesn't like this, it doesn't work that way कि जी BOF ने कर दिया, बोर्ड ऑफ फैकल्टी ने कर दिया, बोर्ड ऑफ स्टडी ने कर दिया, तो जी हम भी अब बस यहाँ बैठ के इसको कर दें. यूजुअली ये होता है कि वर्किंग पेपर्स हमारे पास आते हैं, तो शुरू में व्हेन आई वाज इन दाऊद तो मुझे कहा गया कि जी मैडम ये बोर्ड ऑफ फैकल्टी के मिनट्स हैं, इनको आप पहले देख लें तो हम निकाल दें. मैंने कहा जी बोर्ड ऑफ फैकल्टी तो मैं चेयर नहीं करती, आपने जो डिसीजंस लिए हैं ऑन दैम, मैं इनको एकेडमिक काउंसिल में चैलेंज करूँगी अगर मुझे ज़रूरत हुई. सो फिर वहाँ से क्या होता है, एकेडमिक काउंसिल में जब हम बैठते हैं तो 2 फिल्टर से वो चीज़ होकर आ रही होती है. तो हम फिर जब वहाँ क्वेश्चन रेस करते हैं कि ये PLO जो आपने लिखा है या जो कोर्स लर्निंग आउटकम आपने लिखा है, भाई इसकी लैंग्वेज आप लिख रहे हैं सो एंड सो, और ये आप कॉग्निटिव फोर्स से, तो अब हम वो वाली डिबेट करते हैं एकेडमिक काउंसिल में. तो अगर मैं एकेडमिक्स नहीं हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में एकेडमिक साइड की यानी एक पेडागोजिकल मेरी अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, तो मैं कैसे चैलेंज करूँगी उस डीन को कि आपका जो अप्रूव्ड BOF का एक रेकमेंडेड है ये ठीक है या नहीं है. तो वो जो एक कंसेप्ट आता है कि जी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर को लाके यूनिवर्सिटी में आप VC लगा दें, तो फिर आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रॉब्ली उस तरह केटर नहीं कर पाएंगे, या अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगा, फिर वो पर्सन टू पर्सन चला जाएगा. जो ज़्यादा अच्छा डीन होगा क्वालिटी कॉन्शियस, उसका डिपार्टमेंट उसकी फैकल्टी ऊपर चले जाएगी, जो बेयर मिनिमम चल रहे होंगे. तो इट शुड बी अ गुड मिक्स. और मैं समझती हूँ पर्सनली 40% वाइस चांसलर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, 60% उसके अंदर एक जो उसकी जो इंस्टिंक्ट होती है वो रिसर्चर और आपके एकेडमिक्स की ही होनी चाहिए. बिकॉज 60% हमारा प्राइमरी जॉब क्या है, सक्सेसफुल ग्रेजुएट. अब खाली यूनिवर्सिटी की सफाई, यूनिवर्सिटी की मेंटेनेंस, यूनिवर्सिटी के फाइनेंसेस से तो ग्रेजुएट नहीं बन जाएगा. तो मेरा प्राइमरी प्रोडक्ट जो चीज़ है मेरी, उसकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा ज़रूरी है. हाँ, जिस तरह एक सप्लाई चेन होती है किसी इंडस्ट्री के अंदर, उसमें हर चीज़ रिक्वायर्ड है. उसमें कॉस्टिंग करने वाला बंदा अलग होता है, उसमें मार्केटिंग करने वाला बंदा अलग होता है, लेकिन जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेगा उसने जिसने करना है उसकी वो एक्सपर्टीज़ आपको चाहिए. तो ये पूरा एक मल्टी डिसिप्लिनरी है, और हर वाइस चांसलर में 40% एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड्स की ज़रूरत होती है जो मैं समझती हूँ, और 60% उसको बहरहाल एक एकेडमिक ही होना चाहिए. हम बड़ी अच्छी खबरें सुनते हैं दाऊद के बारे में, सिंस यू आर देयर. व्हेन यू आर जॉइनिंग दिस यूनिवर्सिटी, तो आपका क्या विजन था कि व्हाट वुड यू बी डूइंग ड्यूरिंग द टेन्योर, हाउ फार यू हैव बीन एबल टू अकम्प्लिश, कितना आप कामयाब रही हैं, और उसमें किन अवामिल ने आपकी मदद की है, कौन से वो फैक्टर्स, इफ़ यू हैव नॉट बीन एबल टू अचीव सर्टेन थिंग्स, तो वो कौन से फैक्टर्स थे which have really kept you from doing that? फर्स्ट ऑफ ऑल एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग मेरे दिमाग में बड़ा क्लियर था कि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्लेस, बिकॉज इसके मल्टी प्रोंग चैलेंजेस थे. कोई यूनिवर्सिटी होती है खाली फाइनेंशियली सफ़र कर रही होती है, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन प्लेस. कोई यूनिवर्सिटी होती है वहाँ आपके पास डिसिप्लिन का चैलेंज होता है, कहीं आपको हमारे पास कौन सा चैलेंज है जो नहीं था टू बिगेन विद. फिर ओवर एम्प्लॉयमेंट के इशूज़ थे हमारे, डेफिसिट्स एंड लाइबिलिटीज़ अलग थी, स्टूडेंट डिसिप्लिन अलग था, एकेडमिक डिसिप्लिन भी अलग था, और फिर मेरिट, जो स्टूडेंट मेरिट की मैं बात कर रही हूँ, एग्जामिनेशन में आई रिमेंबर व्हेन आई ज्वाइन, तो मुझे पता चला कि 411 रिज़ल्ट अभी तक अनाउंस ही नहीं हुए हैं. यानी जो बच्चा सेकेंड सेमेस्टर से 6th में पहुँच चुका हुआ था, उसका एक भी रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ था, और वो चल रहा था. तो ये वाले मतलब आप यू नेम इट के कहाँ भी आप हाथ रखें वहाँ एक लैंड माइन थी. तो हम उससे बच के चल रहे थे कि इनको हम डिफ्यूज़ करते हुए आगे बढ़ें. तो लिस्ट बनाने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं जब मैं आई थी
कि मैं क्या करूँगी। सबसे पहले तो यही था कि इन लैंड माइन से बचते हुए पहले तो आपने इन सारे को डिफ्यूज़ करना है, उसके बाद फिर एक आपको एक ग्राउंड बनेगा, उसके ऊपर फिर हम देखेंगे हाउ कैन वी बिल्ड अपॉन एंड हाउ मच कैन वी बिल्ड अपॉन। बिकॉज व्हाट आई बिलीव कि एवरी इंस्टीट्यूशन हैज़ अ कैपेसिटी, उस कैपेसिटी से ज़्यादा आप उससे एक्सट्रैक्ट कर नहीं सकते। मेरी एक पोटेंशियल होगी, उस पोटेंशियल से ज़्यादा हम उससे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप कितना ही मेरे पे इन्वेस्ट कर लें, हम बच्चों को जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं हम कहते हैं डायोड है, उसका करंट एंड वोल्टेज डायरेक्टली रेसिप्रोकल है। अब वो अगर आप एक वक्त आता है कि वोल्टेज की इनपुट कितनी बढ़ाते जाएं, करंट जो है वो प्लेटो कर जाता है, बिकॉज अब आप वोल्टेज ज़ाया कर रहे हैं, करंट नहीं बढ़ने वाला। तो यही इंस्टीट्यूशंस के साथ भी है, ह्यूमन बीइंग के साथ भी है। तो मैं जब वहाँ गई थी तो मुझे सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आइडिया था कि यार यहाँ जो ये साइंसेस की फैकल्टी है, इंफॉर्मेशन एंड उस ज़माने में वो आइश करके कुछ नाम था और उसको ह्यूमन साइंसेस में दिया हुआ था, काफ़ी कुछ हौश पौश था, बट अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक चीज़ थी कि मुझे उसको पहले एक सेपरेट आइडेंटिटी देनी है, क्योंकि वो हमारा मिल्किंग काउ था। वो प्रोग्राम किस नीयत से खोले गए थे, उनकी क्या फैसिलिटीज़ थी, कुछ भी नहीं था। तो उनको एक ज़ाहिर है हमें चैलेंजेस थे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वालों से भी चैलेंज थे हमारे कि जी वो आके देखते थे तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, स्टूडेंट को हम सुपर चार्ज कर रहे थे उस वक्त उन डिसिप्लिन्स के, और उनकी कोई डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ थी नहीं। फिर अल्लाह का शुक्र है प्रपोज़ल केम टू मी कि जी एक मेजर तफ़ैल शहीद स्कूल है फिडलबी एरिया में, वो डोमेंट है, अगर हम उसको टेकअप कर लें। पहले वो हम टीएमसी के साथ इंगेज हुए, फिर लोकल बॉडी के लोकल गवर्नमेंट के साथ इंगेज हुए। आज माशाल्लाह वहाँ आप जाके देखें तो एक एंटायर न्यू वर्ल्ड इज़ देयर। वो पूरा ग्राउंड ज़ीरो से हमने शुरू किया। फरवरी 2024 में हमने साइन अप किया था MOU विद दैट स्कूल, और अक्टूबर 6 2024 को हमारा वहाँ ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। और फिर उसके बाद हम अब फाइनली उसका ऑडिटोरियम सिर्फ रह गया। माशाल्लाह वहाँ मेरे तकरीबन 1975 स्टूडेंट्स वहाँ अभी हैं। तो वो जब यहाँ से निकल के बच्चे उधर गए तो यहाँ कुछ रूम क्रिएट हुआ। वो रूम क्रिएट करके हमने जो इकबाल कैंपस का हमारा छोटा सा एक डैप चल रहा था, उसके बच्चों को यहाँ मूव किया, उनका पूरा फ्लोर रेनोवेट किया, उनके स्टूडियोज़ बनाए, स्मार्ट स्फीयर कन्वर्टेबल क्लासरूम्स बनाए। फिर हमने प्रोजेक्टर्स जहाँ जहाँ पता चलता था ख़राब होते जा रहे हैं तो मैं उनको रिपेयर नहीं कराती थी, मैं स्मार्ट स्क्रीन दे देती थी। बिकॉज वी हैव टू इवॉल्व एज अ न्यू यूनिवर्सिटी एंड यू नो कम्प्लीटली इक्विप्ड टू टेक अप द फ्यूचर चैलेंजेस। तो अब वो प्रोजेक्टर के बदले प्रोजेक्टर लगाना मेरे दिमाग में तो नहीं आता एटलीस्ट। तो मैं उनको लगा देती थी कि जी आप नया स्क्रीन लगा लें, बिकॉज एक USB डाल के यूट्यूब पे आपको जो मर्ज़ी है दिखाएं बच्चे के साथ। इंटरेक्टिव स्क्रीन्स हमने दी। इस तरह से हमने यूनिवर्सिटी के अंदर का माइंडसेट भी चेंज किया, क्योंकि मैंने ये चीज़ फील की एक स्टूडेंट का जो कॉम्प्लेक्स लेवल था ना दाऊद को लेके, वो बहुत ज़्यादा था। सही। वो बहुत डाउन शोल्डर था, उसको ये होता था यार हम तो पीले स्कूल में जैसे पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम छोटी छोटी चीज़ें कर रहे थे, वो अलूको बॉन्ड की वॉल हमने खूबसूरत की, वहाँ बच्चों ने सेल्फियाँ लेना शुरू की, फिर हमने अपनी ब्रांडिंग वॉल बनाई, ऑडिटोरियम रेनोवेट किया, सेनेट हॉल। तो बच्चे अब हर कॉर्नर को कवर करते हैं और सेल भी करते हैं। तो उनकी एकदम से एक जो सेल्फ स्टीम का लेवल था, कॉन्फिडेंस था, वो बूस्ट हुआ कि वो आज NAD वाले से भी बात करें तो नहीं, ये नहीं होता कि यार हम दाऊद में पढ़ते हैं, यार हम तो नो, वो अपने आप को कहीं ना कहीं इक्वल या कहीं ना कहीं उनसे कंपैटिटिव फील करते हैं, बिकॉज एम्बियंस एक्चुअली एड्स वैल्यू टू योर लर्निंग ऑल्सो। ये वाले चीज़ भी थी कि एक अपलिफ्ट भी करना है उसको, फाइनेंस को भी देखना है, स्टूडेंट की जो एम्प्लॉयबिलिटी है, दैट वाज वन। मैंने उसको 3 प्रोंग लेकर चली कि कौन लोग इंडस्ट्री प्लेसमेंट चाहते हैं, कौन लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, और कौन लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग और देयर हायर क्वालिफिकेशन। हम 6 सेमेस्टर में हमने एक ट्रेनिंग नीड असेसमेंट्स की। फर्स्ट ईयर में हमारे पास 21% की रिक्वायरमेंट आई इंडस्ट्री प्लेसमेंट की, एंड बिलीव मी कि हमने 82% बच्चों को इंडस्ट्री प्लेसमेंट दिलवाई अगेंस्ट दैट 21%। फिर हम नेक्स्ट ईयर जब आए तो वो परसेंटेज 26 पे चली गई। इस साल मेरा एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो 89 पॉइंट समथिंग है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 89 बट है राउंड फिगर। तो ये सब कैसे हुआ? हमने फिर माइक्रो डिग्री प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया कि जो स्किल की बात होती है, एवरी थिंग कैन नॉट बी एक्चुअली पैक्ड इन टू वन करिकुलम। तो ये जो आपके इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन से ये हमने अपनी कॉस्ट पे बच्चों को कराने शुरू किए। उससे क्या हुआ कि हमारे बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ गई, उनकी डिमांड बढ़ गई, और मेरे यहाँ अब इंजीनियरिंग की इनरोलमेंट 2 सालों से ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों को जॉब्स मिल रही हैं। लोग कहते हैं इंजीनियरिंग में डिक्लाइन आ रहा है, मैं अभी चेंज ऑफ स्कोप करा रही हूँ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का, 50 सीटें बढ़वा रही हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री कह रही है कि आप ये बच्चे बढ़ाएं हमारे लिए। एक्सीलेंट। सो ये कुछ ऐसे आउट ऑफ बॉक्स चैलेंजेस हमने अपने लिए लिए और उनको इम्प्लीमेंट किया, और माशाल्लाह 3 साल से हम रोल कर रहे हैं।
सक्सेसफुली कर रहे हैं। गूगल करियर सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी फिर हमें उसके लाइसेंसेस दिए थे, उसमें भी हमने बड़ा सक्सेसफुली बच्चों को PMP सर्टिफिकेशंस करवाई, स्पेशलाइजेशंस करवाई। तो वो बच्चों की जो अब डिमांड है ना, वो अच्छा, मैं दूसरा जॉब फेयर नहीं करती, मैं रिक्रूटमेंट ड्राइव्स करती हूँ। 64 मैंने की थी पिछले साल, अभी तक की 33 हो चुकी हैं। माशाल्लाह। तो बिफ़ोर कॉन्वोकेशन मेरी काफ़ी से ज़्यादा लॉट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्लेसमेंट ऑर्डर्स लिए बैठी होती है। लास्ट ईयर मेरा एक बच्चा था, उसने 14 ऑफर लेटर्स थे उसके पास, एंड ही वाज लाइक कंफ्यूज कि मैं कहाँ जाऊँ। तो हम लोग थोड़े से ना, हम वी डोंट गो फॉर द ऑप्टिक्स, हम देखते हैं आउटकम क्या होएगा। तो हम हमारी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होती हैं माशाल्लाह। मेरा DILP भी, उसको भी मैंने इस्टेब्लिश किया, डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस एंड प्लेसमेंट ब्यूरो। इंटर्नशिप्स हमारे यहाँ मैंडेटरी हैं, हाउएवर अभी तक इंजीनियरिंग काउंसिल ने उसको मैंडेटरी नहीं किया, लेकिन मेरे यहाँ में वो मैंडेटरी हैं और 96 आवर्स की हैं। और वो भी ये नहीं कि आप अपने किसी रिश्तेदार से जाके एक लेटर ले आएँ और मुझे तसल्ली दे दें मैंने कर ली। हम खुद उसकी MNE करते हैं और हमने उसको PLO से भी मैप किया हुआ है और मेरा DILP भी उसको एंडोर्स करता है। और यूजुअली हम ही वो फैसिलिटेटर हैं जो इंटर्नशिप्स को फैसिलिटेट करते हैं। हमने बच्चे पे वो बर्डन नहीं डाला। पहला साल हमने टेस्ट केस किया कि 100% क्या हम कर सकते हैं। अब आप सोचें एक मैथ्स के बच्चे के लिए मैं कैसे इंटर्नशिप कर सकती हूँ, बट वी डिड। एक केमिस्ट्री के ग्रेजुएट को, ये मैं सिर्फ इंजीनियरिंग की बात नहीं करी, जितने प्रोग्राम्स मेरे पास चल रहे हैं, तो हमने ये किया। उसी तरह मतलब लाइक ये सारा कुछ करने की वजह से हुआ क्या, ऑडियंस का कॉन्फिडेंस। मेरे पास 1202 इनरोलमेंट आई इस साल 25 में, लास्ट ईयर, और इस बार मेरा ड्रॉप आउट सिर्फ 4% है। पहले साल इट वाज 16%, दूसरे साल इट वाज समवेयर अराउंड 11%, और इस साल सिर्फ 4% है। ज़बरदस्त। सो ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको खुद ही बता रहे होते हैं कि हाउ वेल आर यू डूइंग। ऑल्दो वी आर नॉट देयर जहाँ मुझे होना था। मैं LMNI के ऊपर थोड़ा सा अभी अपने आप को कहती हूँ कि शायद मैं फिर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल करते करते भी वी मैनेज टू हैव फर्स्ट LMNI एक्सेलेंस अवार्ड विच वाज अटेंडेड बाय, आई टेल यू, वेरी हाई प्रोफाइल पीपल, जो शायद दाऊद कॉलेज से अपने आप को अब शायद उतना, क्योंकि वो NED की डिग्री मिलती थी उस ज़माने में, तो वो अपने आप को NED में पार्क करते थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह somehow or the other we have brought them back home। और बड़ा अच्छा हमारा वो इवेंट गया। अभी उसके इलेक्शंस भी हम करवा रहे हैं LMNI के, ताकि वो जो एक सीट होती है LMNI की सिंडिकेट पे, मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले वो भर जाए, अभी वो मैं नहीं कर पाई। एक और चीज़ जो मैंने कमिट की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो इन प्रोग्रेस है, कि मैंने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स छोटा सा बच्चों से कमिट किया हुआ है, वो इन प्रोग्रेस है, चल रहा है। और एक स्टूडेंट डॉर्मेट्री, नॉट हॉस्टल, बिकॉज हॉस्टल चलाना फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है यूनिवर्सिटी के लिए, हम इतनी सब्सिडी दे नहीं सकते। तो डॉर्मेट्री पे ऊपर हम कर रहे हैं काम, अमेरिकन मॉडल के ऊपर, तो वो भी इंशाल्लाह हमारा मई में इट विल कम अप। आपने बहुत से जो क्वेश्चन हैं प्रीएम्प्ट कर लिए व्हिच आई हैड, कि आई नो वन थिंग दैट यू आर अ पर्सन हु वॉक्स विद अ पर्पस, यू हैव अ विजन एंड आप आगे देख रही होती हैं। ये क्वेश्चन मेरे जहन में भी था कि the lot that universities generally produce, for example, very good engineers but very poor leaders, very poor communicators, body language excellent, for example, in finance, drooping shoulders and all this, and this is really great कि आपने इस पे काम किया है। What you or other universities are doing to make youth future ready, or more accurately future proof, कीपिंग इन व्यू जो चेंजेस टेक्नोलॉजी में आ रही हैं, जो डिमांड्स हैं आफ्टर कमिंग टाइम्स, उस हवाले से क्या हो रहा है? देखिए, वो जो मैंने MDP का जिक्र किया, वो गूगल करियर सर्टिफिकेट हो या आयुष निबोश के हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के सर्टिफिकेशंस हो, ये है ही इसीलिए कि जो फ्यूचर है ना वो स्किल का है। डिग्री तो आपका सिर्फ पहला एक पासपोर्ट है, उस पर जो आपको जॉब का वीज़ा है ना, वो आपकी वो स्किल सेट है जो प्रूवन हो। ये नहीं कि मैं कहूँ कि जी आई कैन कुक, I have to have some international certificate that I am a chef, right? तो यही वो हमने जो MDP के थ्रू एक चीज़ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा दाऊद का लोगो प्रॉब्ली सिंध या पाकिस्तान के बाहर इतना शायद लोग ना जानते हों। तो मैं अगर कोई इंटरनल ट्रेनिंग किसी को करा के कहूँ जी दाऊद सील कर रहा है कि आपको नेटवर्किंग आती है, बट क्रॉस बॉर्डर कौन मानेगा? तो हम बच्चों के साथ यही कर रहे हैं कि हम उनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस दे रहे हैं जो अक्रॉस द ग्लोब, वो कहीं जाके अगर कहेंगे मैंने ये सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, तो पीपल विल रिस्पेक्ट दैट। तो फ्यूचर रेडीनेस का एक ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट मैं आपको बताऊं, जो हमने AVR लैब स्टैब्लिश की है अपनी फैकल्टी ऑफ INCS में, उस लैब का मैंने कोई मैनुअल नहीं बनवाया।
कि जी 12 घंटे बच्चे ये परफॉर्म करेंगे, एक डेमोन्स्ट्रेटर आएगा बताएगा ऐसे करो, नो। आई हैव केप्ट इट एज अ टॉयलैंड फॉर देम। मैं अपने डीन को कहती हूँ जब जो बैच आता है ना इसके अंदर, उसको बच्चे को कहो कि ऑक्यूलर्स निकाले, ये निकाले, जो करना चाहता है करे, लेट देम प्ले विद दिस, बिकॉज अनलेस दे वोंट एक्सप्लोर देम सेल्फ, हमें बहुत से फीचर्स नहीं पता होंगे। वो बच्चा मुझे निकाल के दे देगा, मैडम इसमें तो ये भी होता है, हम तो इसमें ये भी कर सकते हैं, बिकॉज आप उनको थोड़ा सा फ्रीडम दें। अब आजकल वैसे भी सेल्फ लर्निंग का दौर है, तो हमने वो AVR लैब में भी यही किया हुआ है। बल्कि मैं आपको बताऊं, मेरी एक स्टूडेंट है, उसने जब अपना GCC ख़त्म किया, आई थिंक हादिया नाम है, शी वाज अ विनर ऑफ AI शॉर्ट मूवी ऑल्सो, तो वो अभी एक हमारे फैकल्टी मेम्बर्स को कुछ बता रही थी और वो बाकायदा हमने कैप्चर किया, बिकॉज वी डोंट माइंड लर्निंग फ्रॉम स्टूडेंट्स। देखिए इकबाल ने बहुत पहले कह दिया था, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अब ये दिस इज़ द वेरी एरा कि हमें ये चीज़ माननी पड़ेगी। तो हमने अपने स्टूडेंट्स, अब एक बड़ी ज़बरदस्त सी बात है मैं शेयर करना चाहूँगी। साइबर सिक्योरिटी का मेरा एक स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर का, और आपको पता है हमारी यूनिवर्सिटी अब काफ़ी पेपरलेस हो गई है, डिजिटल हो गई है, पूरे बच्चों का स्टूडेंट जर्नी डिजिटल हो गया, फ्रॉम एडमिशन टू ग्रेजुएशन एवरीथिंग इज़ ऑन पोर्टल, नथिंग ऑन पेपर। तो उस बच्चे ने फालतू था, रमज़ान में वर्क फ्रॉम होम हम करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस थी, तो उसने एक वल्नरेबिलिटी कैचअप की उसी हमारे सॉफ्टवेयर की जो वो खुद बच्चे यूज़ कर रहे हैं, जिसमें उसको कुछ सिक्योरिटी थ्रेट नज़र आया। ही रोट एन ईमेल टू मी विद द कॉन्फिडेंस के ज़ाहिर है मैं पढ़ती हूँ और मैं रिस्पॉन्ड भी करती हूँ। उसने मुझे ईमेल लिखी। अब कोई अगर हम चले जाएं 20 साल पहले तो शायद कोई VCO अव्वल तो पढ़े भी ना, और पढ़े तो क्या यार ये बताएगा हमें कि हमें ये करना है। वी डिडंट डू दैट। हमने उसको पढ़ा, मैंने अपने डायरेक्टर ICT को लूप में लिया, मैंने उसको बोला भाई ये वेंडर को बताएं जो हम जिससे हमने ये सर्विसेज ली हुई हैं। उस वेंडर ने इंडोर्स की बात, उसने पैचिंग की, मैंने उस बच्चे को ग्रीट किया, थैंक यू किया, फिर मैं इन पर्सन उससे मिली, और अभी परसों फिर उसने एक और वल्नरेबिलिटी निकाल के मुझे दे दी है। तो मैं उसको हंस के कह रही थी भाई डोंट मेक इट अ हैबिट यार। सो ये एक बच्चों के साथ आपको उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि अगर वो कोई चीज़ आपको बता रहे हैं ना, तो वो ये समझें कि नहीं ये अगर रैशनल होगा तो ये सुनी जाएगी और इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। ये कॉन्फिडेंस हम अपने स्टूडेंट्स में ला रहे हैं, ताकि वो जो आप कह रहे हैं ना, वो जब बैठते हैं तो ड्रूप शोल्डर एंड ऑल दैट, तो जब वो एक कॉन्फिडेंस से बैठेंगे कि हम ये अपनी यूनिवर्सिटी में चैलेंज करते रहें चीज़ों को, उनके अंदर एक चीज़ होगी कि यार नो मैटर मैं अभी क्या हूँ, अभी मैं अंडर ग्रेड का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, येट आई वॉज हर्ड एंड अपॉन माई रिकमेंडेशन समथिंग वॉज एक्चुअली डन। तो ये कॉन्फिडेंस आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने पूरे एक कल्चर बनता है। ये ऐसे नहीं मैं क्लास में कह सकती कि आप बस कॉन्फिडेंस ले आएँ, आई हैव टू एक्चुअली मेक देम लिव दैट कॉन्फिडेंस। अच्छा, एक थोड़ा सख्त हो जाएगा सवाल, एंड आई नो आप भी जो है ना वेरी स्ट्रेट टॉकर हैं, एंड यू से इट ब्रूटली एंड ऑनेस्टली। सरकार यूनिवर्सिटीज़ को भी स्कूल्स की तरह, पीले स्कूलों की तरह क्यों चलाना चाहती है? इसमें थोड़ा सा एक हम बात ये कह सकते हैं कि सरकार का लफ्ज़ थोड़ा ज़रा ब्रॉडर है, ठीक है। ये बात मैं बहुत टाइम से चैलेंज करते आ रही हूँ कि जी यूनिवर्सिटीज़ की जो ऑटोनॉमी है इट शुड बी रिस्टोर्ड, ठीक है। हाउएवर वी स्टिल कॉल आवर सेल्फ कि हम ऑटोनमस हैं, हाँ जी हम ऑटोनमस हैं, बट मेरा मसला यहाँ फाइनेंसेस से नहीं है, मेरा मसला यहाँ और किसी एम्प्लॉयमेंट के इश्तिहार की इजाज़त लेने से नहीं है। वो ठीक है कि देखें ना, होता यह है कि देयर इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर द रेगुलेशन। व्हेन यू अब्यूज़ योर फ्रीडम, definitely you will have to face a regulation or you have to face some stringent regulation at times, but किसी एक की ख़ता का गुनाह दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोई एक दो यूनिवर्सिटीज़ अगर कोई मैल प्रैक्टिस करती हैं तो हम पैनाडोल से इलाज करने के बजाय सर काटने को मुनासिब समझते हैं कि ईजीएस्ट ऑफ ऑल इज़ दिस कि जी बैन कर दो सबको, नो मैटर अगर कोई रैशनली कर रहा है उसको भी बंद, कोई इरैशनली कर रहा है उसको भी बंद। इसके लिए मैंने एक तजवीज़ दी है और वो मैंने इन राइटिंग दी है, चेयरमैन HEC को भी मैंने प्रेजेंट की है और मैंने चेयरमैन सिंध HEC को भी इनफॉर्मली प्रेजेंट की है, इन राइटिंग प्रेजेंट की है कि आप एक काम ये कर लें, आसान हो जाएगा हमारे लिए भी आपके लिए भी, कि ये जो इस किस्म की जो ये कि नया प्रोग्राम खोलेंगे तो हमसे पूछेंगे जी फीजिबिलिटी जमा कराएंगे और फिर ये होगा वो होगा, फेयर इनफ, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ गलत
कर भी रही हैं, मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि जी सारा गलत हो, उनके पास रीज़न है ऐसा करने का। तो हमें अब उसको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, इसको इंसेंटिव की तरफ लेके जाना चाहिए। मैं कह रही हूँ आप मुझे मॉनेटरी इंसेंटिव ना दें, मैं कह रही हूँ आप अगर मेरी यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप मुझे कह दें कि ठीक है जी, आप अपने बजट के तहत जो एम्प्लॉयमेंट करना चाहती हैं करें, अगर अगले साल मैं आपको डेफिसिट दूँ आप फिर मेरे पे क्योंकि पाबंदी का कार्ड तो आपके पास पड़ा है, जब चाहें इम्प्लीमेंट कर दें। लेकिन जब आप मुझे एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज देंगे बेस्ड अपॉन माई परफॉर्मेंस मेरिट पे, वो हेयर से पे नहीं, आप मेरे नंबर्स देखें, मेरा ग्रेडियंट चेंज देखें और मुझसे ही कंपेयर करें। मुझे आप जीआई कैसे कंपेयर करेंगे, तो मैं आज भी कहीं बहुत नीचे छोटी मोटी चल रही होंगी, या एनएडी में शायद मैं बहुत कोई छोटी मोटी। पॉइंट इज़ दिस कि व्हेन आई टुक अप दिस यूनिवर्सिटी एंड व्हेन आई एम स्टैंडिंग टुडे, तो इफ़ द ग्रेडियंट चेंज इज़ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इनफ टू गिव मी दिस इंसेंटिव कि ठीक है आप पे से ये रेगुलेशन हम कुछ अर्से के लिए लिफ्ट कर लेते हैं, तो हर वाइस चांसलर जब इस ऑटोनॉमी के लिए स्ट्राइव करेगा तो वो ऑटोमेटिकली खुद को रेगुलेट करेगा, और जो सेल्फ रेगुलेशन होगी ना, that would have more impact than something that I receive as in directive or a notification. सही, ये मेरा एक पहला इसके ऊपर है। फिर आ जाते हैं करिकुलम पे। अब होता क्या था कि जब हम शुरू में NCRCs वगैरह में मैं खुद पार्टिसिपेट करती थी बैक इन 2009, उस वक्त ये बड़ा एक ब्रॉडर डॉक्यूमेंट होता था कि यूनिवर्सिटीज़ को आप सिर्फ ये बता दें कि आपने बेयर मिनिमम तो ये कंसेप्ट बच्चे को अंडर दिस कोर्स टाइटल पढ़ाने ही पढ़ाने हैं। अब क्या हुआ है, मेरे ख्याल से अब सिर्फ लेसन प्लान तक आना रह गया है कि जी किस वीक में क्या पढ़ाया जाएगा, और हर दूसरे दिन एक ईमेल आती है करिकुलम फॉर दिस करिकुलम। भाई मसला ये है कि गैप कहाँ है, आप लाख मुझे करिकुलम बना के दे रहे हैं तो हम सब क्यों नहीं एट पार सेम परफॉर्मेंस दे रहे हैं? क्यों किसी एक का ग्रेजुएट इज़ लाइक हॉट सेलिंग केक एंड अगले का डिग्री लेके घूम रहा है? तो अगर करिकुलम का ही स्टैंडर्डाइज करने से ये हल हो रहा था तो ये नहीं है। माई पॉइंट इज़ दिस कि आप ब्रॉडर दे दें, स्केलेटन आपने जैसे डिग्री के फ्रेमवर्क का दिया हुआ है कि जी इतने कोर्सेज पढ़ने हैं, इतने ब्रेथ कोर पढ़ने हैं, इतने इलेक्टिव्स पढ़ने हैं, फ़ाइन, हम अपना कर रहे हैं। अब आप हमें जब कोर्सेज़ की भी लेसन प्लान या करिकुलम डिज़ाइन करके भेजेंगे तो एक तो हम ब्रेन डेड हो रहे हैं, इस हद तक हो रहे हैं कि मैं मिसाल दूँ, हमें गैदरिंग में बैठे हुए थे वाइस चांसलर्स की, AI के डायरेक्टिव का वो लेटर आया HSC की तरफ से। अब हम इतने ब्रेन डेड हो रहे हैं हमारे कोलीग्स कि कह रहे हैं HSC को वो AI का करिकुलम भी दे देना चाहिए था कि हम कैसे, क्योंकि आपने कर दिया है, हम थे नहीं, आपने कर दिया है, क्योंकि अब हम सोचते ही नहीं हैं, हमें तो ये पता है बस इंतज़ार करो आएगा वो इम्प्लीमेंट कर देना। और हम सिंडिकेट में बैठ के क्या करेंगे, एकेडमिक काउंसिल में बैठ के क्या करेंगे जी, एज़ पर HSC हमने अडॉप्ट कर लिया, सारे मेंबर्स कहेंगे अडॉप्टेड है ना बस ठीक है, नोबडी विल गिव अ डिस्कशन और डिलिब्रेशन। इस तरह तो मेरा हमेशा से ये एक सवाल रहा है कि फिर विजन स्टेटमेंट्स आप हटा दें सारी यूनिवर्सिटी की, एक विजन स्टेटमेंट बता दें HSC की तरफ से, क्योंकि हम सब वही तो बन रहे हैं। अब हमारे यहाँ एक कंसेप्ट नहीं है कि टीचिंग यूनिवर्सिटी, रिसर्च यूनिवर्सिटी या एंटरप्रेन्योरल यूनिवर्सिटी, ठीक है, हम इस कंसेप्ट को लिव ही नहीं कर सकते क्योंकि हमें डंडे से टीचिंग यूनिवर्सिटी ही बने रहने पे जोर दिया जा रहा है। फिर उसके बाद जिस किस्म, देखें क्वालिटी कंट्रोल दूसरे मुल्क भी तो कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है, वहाँ भी तो रेगुलेटर्स हैं। हम उससे ज़्यादा कुछ जो है ना, एक रूल टूटता है किसी एक से, हम उसको अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए मना कर देते हैं। तो वो जो फ्रीडम ऑफ थिंकिंग है ना, और वो जो हमारी अपनी एक विजुअलाइजेशन होती है अपनी इंस्टीट्यूशन के बारे में, वो किसी हद तक एक कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है। तो अब होता ये है कि मुझे लेट सपोज इलेक्टिव्स में स्पेस मिलती है थोड़ी सी, वहाँ हम कोशिश करके कर लेते हैं कि जी इलेक्टिव में 6 इलेक्टिव्स हैं या 4 हैं, तो वहाँ हम बच्चे को थोड़ा सा क्लोज टू मार्केट पढ़ा दें। दूसरी बात यह है कि देखें जो लोग करिकुलम बना रहे हैं ना, वो एग्जीक्यूटर जो क्लासरूम में जा रहा है उसको नहीं पता। मैं भी जब NCRC में बैठी होती थी मैं कहती थी ये सर्किट एनालिसिस में मेरा मकसद इसको डालने का ये है। भाई वो मकसद मगर उसकी अवेयरनेस कौन फैलाएगा? टीचर क्लास में जाके उसको नहीं पता ये कंसेप्ट क्यों बना था। सो बहुत सारी चीज़ें, ये गैप एनालिसिस एक होना चाहिए ना। आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ को कम से कम भी ना करिकुलम डिज़ाइन करने की लिबर्टी है। 10% जो प्रोविज़न छोड़ा हुआ है कि जी इसमें आप ट्वीक कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम एक दूसरे से कहीं भी डिफरेंट हो सकते हैं। सही। और डिफरेंट तो दूर की बात, हम बराबर भी नहीं हो पा रहे, क्योंकि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपर्ट्स लेकर आप बिठा देते हैं, वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज, अपने लाइब्रेरी रिसोर्सेज, अपने रिसर्च रिसोर्सेज के हिसाब से करिकुलम बना देते हैं। जब वो किसी Tier 3 यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है वो उस तरह इम्प्लीमेंट हो भी नहीं सकता। इट कैन नॉट बी वन साइज फिट टू ऑल।
यू हैव टू सी कि एक यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव, आप हमें जब एनओसी मिलती है तो बेयर मिनिमम पे मिलती है ना। वेरी राइट। तो आप जब करिकुलम हमें आता है उसमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के जिनके रिसोर्सेज हमसे बेहतर हैं, हमसे अपग्रेडेड हैं, मैं अपनी दाऊद की बात नहीं कर रही प्लीज़, मैं जनरली बात कर रही हूँ, मैं आई एम बीइंग द डेविल्स एडवोकेट राइट नाउ, कि हमारे पास बहुत सारे देखें ना, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं, कुछ केपी के एरियाज़ होंगे, कुछ इवन सिंध के एरियाज़ हैं जहाँ ये फैसिलिटीज़ बहुत सारी उन यूनिवर्सिटीज़ के पास नहीं है अवेलेबल। जब करिकुलम आता है वो सब पे अक्रॉस द बोर्ड आता है, तो इम्प्लीमेंटेशन में या तो मैं आई वॉश करूँगी। सही सही, वेरी राइट। तो ये जब अगर हम थोड़ा सा रैशनली समझेंगे ना कि भाई आप अगले से वही डिमांड करें जो वो डिलीवर कर सकता है, उसको झूठ बोलने पे मजबूर ना करें। अगर आप गवर्नमेंट को एडवाइस करें, लाइक मुशीर हो, मुशीर ख़ास ऑन हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज़, तो कौन से चंद रिफॉर्म्स हैं जो आप सजेस्ट करेंगी? और स्पेशली फंडिंग के हवाले से तो ज़रूर बताइएगा कि द वे यूनिवर्सिटीज़ आर फंडेड, इज़ इट लाइक गुड इनफ? देखें, वो एक किसी सहाफ़ी ने बड़ा अच्छा सवाल किया था प्रेसिडेंट ट्रम्प से कि सर हाउ मच मोर इज़ इनफ। तो वो अगर आप पब्लिक सेक्टर वीसी से ये पूछेंगे जी कितने पैसे इनफ हैं, तो वो तो कभी भी इनफ नहीं होते। आपने जो सवाल पूछा है उसको मैं अगर उस राइट टेंजेंट पे समझ पाई हूँ तो वो ये है कि व्हाट शुड बी द मॉडस्ट ऑपरेंडाई behind the funding या mechanics behind the funding or the parameters into the considerations while we are funding। उसमें मेरा सबसे बड़ा तो सर देखें पॉइंट यह है कि परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटी की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा रिवाज है, आप अच्छा परफॉर्म करें तो आपको वो रिस्पांस नहीं मिलता फंडिंग की सेंस में जो मिलना चाहिए। जो बेल आउट पैकेजेस मांग रहा हो, जो दबा बैठा हो सब कुछ, उसके लिए हम वो बेचारा बन के सब ले जाता है, और हम ये नहीं सोचते कि ये इस तक पहुंचा कैसे। ग्रांट्स बढ़ रही हैं तो सारी यूनिवर्सिटी के लिए बढ़ रही हैं, और सिंध की गवर्नमेंट को तो मैं दोनों हाथ से सलाम करती हूँ कि द वे दे हैव टेकन अप HEIs एंड देयर फंडिंग इश्यूज, आई थिंक दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। मतलब इवन हम जब फेडरल में भी आते थे ग्रांट्स, ये लेवल नहीं था। अब आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ शिफ्टेड टू द वाइस चांसलर्स। अब हम गवर्नमेंट से फंडिंग के बारे में बात करें तो कुछ शर्म हमें भी होनी चाहिए, और मैं वहाँ तो बिल्कुल भी शिकायत नहीं कर सकती। हाँ, एक एडवाइस ज़रूर कर सकती हूँ कि जितने हम फंड्स भले बढ़ाते जाएं हर साल 10, CM साहब बहुत जनरस हैं इस मामले में, तो वो 10%, 15% जितने भी धैर्य, एक तो सबसे बड़ा जो एक आता है ना आपका डॉक रिलीफ वाला जो 15% सैलरी बढ़ती है, वो तो एक इनएविटेबल चीज़ है, तो उसको तो ज़ाहिर है आप रखें, तो मैं सैलरी तो पब्लिक सेक्टर वाला अपनी किसी भी तरह अभी नहीं निकाल सकता फॉर श्योर। हाँ, हम अपनी जो हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम पहले देखा करते थे, वो ये था कि आपकी इनकम फ्रॉम ओन रिसोर्सेज कितनी है। इट शुड बी आइडियली 30%। अगर मैं CCI वाले कंसेप्ट पे चली जाऊँ तो उन्होंने कहा था कि जनाब फेडरल गवर्नमेंट आपको फ़ंड इस तरीके से करेगी कि जो यूनिवर्सिटी है वो 40% जो है वो अपने ओन रिसोर्सेज से कमाएगी, और जी 20% फेडरल देगी और बचा हुआ प्रोविंशियल देगी। तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ 40% पे चल रही हैं? शायद मेरी भी नहीं चल रही होगी। तो अगर उस तरफ मॉडल पे जाना है कि हम अपने पैरों पे यूनिवर्सिटी को खड़ा कराएं, तो आई थिंक रेकरिंग से ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए एंडाउमेंट्स के ऊपर, क्योंकि एंडाउमेंट की जो रिसीट्स हैं हम उनको खर्च करते हैं अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी ला सकते हैं, रिसर्च पे ला सकते हैं, स्कॉलरशिप्स पे ला सकते हैं, और जो फिर गवर्नमेंट रेकरिंग साथ में देती है उससे हम अपने यूटिलिटीज़ और अदर जो एक्सपेंसेस हैं उसको मीट करते हैं। उसके फिर हमारा एक और ओन रिसोर्स होता है इनकम फ्रॉम द ट्यूशन फ़ी। ऑल्दो हम पब्लिक सेक्टर में सब्सिडाइज ट्यूशन फ़ी रखते हैं, बट अगर मेरी यूनिवर्सिटी पुअर होगी तो एनरोलमेंट पुअर आएगी। लेकिन अगर मेरी यूनिवर्सिटी थोड़ी सी ऑडियंस का कॉन्फिडेंस गेन कर रही है और एवरी ईयर आई हैव सीन एन इंक्रीमेंट इन एनरोलमेंट्स, तो मेरा इनकम फ्रॉम फ़ी भी इम्प्रूव होगा। तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली एक क्लोज लूप ऑपरेशन हो जाएगा कि आपको पता है मेरी इंडाउमेंट साइज़, मुझे गवर्नमेंट लेट सपोज मुझे पता हो कि जी इस बार जो मेरा फ़ंड आना है उसमें से जी 250 या 300 मिलियन मेरा इंडाउमेंट आना है, तो मेरा जो एग्जिस्टिंग इंडाउमेंट है उससे मैं इतनी बढ़ के यहाँ चली जाऊँगी। काइबोर जो है वो मेरा ऑन एवरेज 9% रहना है, तो मैं इतना यहाँ से कमा सकती हूँ। इतने मिनिमम स्टूडेंट्स मुझे हर हालत में चाहिए टू मीट माई एंड्स, क्योंकि गवर्नमेंट मुझे रेकरिंग के तौर पे इतना देगी। तो ये जब हम बैठ के खुद VCs अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं और फिर देखें,
तो बाकी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के पास एफिलिएटेड कॉलेजेस की भी इनकम होती है, छोटी यूनिवर्सिटीज़ के पास नहीं है। और जो यंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेसेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके पास अभी HSC की फ़ंडिंग भी नहीं है। तो उनको तो मेरे ख़्याल से गवर्नमेंट अगर एंडाउमेंट में हेल्प करे, मेरे ख़्याल से हर नई यूनिवर्सिटी का ना, जो गवर्नमेंट को अब चाहिए मॉडल फाइनेंसिंग का करें, वो एंडाउमेंट बेस ज़्यादा करें, ताकि वो कल को सेल्फ रिलायंस की तरफ जा सकें। और इंसेंटिवाइज करना है परफॉर्मेंस पे, तो ये इस किस्म की जो ये रेगुलेशन है थोड़ी थोड़ी, इनको आप पुल बैक करें और उनको थोड़ा सा फ्रीडम दे के चेक करें। अगर वो फ्रीडम उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही तो वापस उनकी फ्रीडम आप सप्रेस कर दें, बट लेट देम हैव दिस कि जब वो इन्जॉय करेंगे ना फ्रीडम, तो वो खुद ही सेल्फ रेगुलेशन में अच्छा काम करेंगे और अननेसेसरी डेफिसिट बजट्स नहीं देंगे। डॉक्टर साहब, एक गैप देखा गया है बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री, इस पे इसको कैसे एड्रेस करें? ब्रीफली आपने बताया था कि आपने इंटर्नशिप्स वगैरह मैंडेटरी कर दी हैं, नॉट ओनली फॉर दी इंजीनियरिंग बट केमिस्ट्री एंड ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए भी। फर्दर व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? देखें, सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव बिन लिसनिंग दिस इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज थिंग, बट यू नो फिर उसके बाद व्हेन वी वर एक्चुअली डूइंग आवर इंजीनियरिंग, तो एक कंसेप्ट आया बिजनेस इनक्यूबेटर्स का। बैक इन 1998 फर्स्ट इनक्यूबेटर हमने सुना जी, हमारी यूनिवर्सिटी में भी बना है। अल्टीमेटली होता क्या है कि ये जो गैप है ना, इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक तो है इंडस्ट्री का ट्रस्ट डेफिसिट ऑन दी एकेडमिक्स, और दूसरा फैकल्टी की थोड़ी सी लिथार्जी, बिकॉज इंडस्ट्री इज़ ओवर डिमांडिंग। जिस तरह आप आराम से क्लासरूम टीचिंग कर लेते हैं, जितना मर्जी हुआ पढ़ा लिया, जितना मर्जी हुआ नहीं पढ़ाया, इंडस्ट्री इज़ नॉट लाइक सच। इफ़ यू हैव सम कमिटमेंट्स विद देम, दे विल डेफिनेटली कम आफ्टर यू फॉर deadlines and for the whatever deliverables you have actually committed with them, they won't let you go। ठीक है, तो ये कुछ फैकल्टी भी थोड़ा हेजिटेट करती है। जो ट्रस्ट डेफिसिट वाला पॉइंट है, आई विल से कि ये जो एक कोविड का टाइम था, एंड देन ये अभी करंट जो वॉर सिचुएशन है, या फिर जब हमारे जो ये एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी की बात शुरू हुई, तो ये 3-4 फैक्टर्स हमें ऐसे मिले कि जहाँ वी कुड हैव पिच्ड मोर बेटर वे देन बिफोर, क्योंकि इंडस्ट्री को इंडिजिनियस सोल्यूशन की कदर हुई, उनको पैसे बचाने थे, उनको अपना रेवेन्यू बचाना था, तो उन्होंने थोड़ा सा टिल्ट किया यूनिवर्सिटीज़ की तरफ। तो वहाँ वो डेफिसिट वाला प्रॉब्लम अगर हम चाहें तो बहुत अच्छे से हल किया भी है कई यूनिवर्सिटीज़ ने। और दूसरी बात यह है कि जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, आपको पता है वो बिज़नेस ओरिएंटेड लोग होते हैं, देयर इज़ नो फ्री लंच फॉर देम। हमारे पास वो अगर फ़र्ज़ करें दाऊद यूनिवर्सिटी का बोर्ड लगा हुआ है और मैं एक बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर उसी बोर्ड के अंदर एक बिल्डिंग में खोल के बैठी हूँ, मिसाल दे रही हूँ, आपकी गाड़ी ख़राब होगी और मैंने अंदर एक मैकेनिक शॉप खोली, तो आप कभी भी दाऊद यूनिवर्सिटी के बोर्ड के अंदर तो नहीं आएंगे। आप कहेंगे यार मैं आई विल गो टू सम एक्सपर्ट, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा होगा। अगर आपको पता भी होगा तो कहेंगे नहीं यार ये यूनिवर्सिटी है। हमने ये एक तोड़ा, वी हैव ब्रोकन दिस शैटर्स के हम बाहर निकले और हमने नैस्टैप सिलिकॉन वैली के अंदर अपने 4 स्टार्टअप्स लॉन्च किए। उसका पूरा जो फाइनेंशियल बर्डन है वो यूनिवर्सिटी ले रही है, लेकिन वो जो 4 स्टार्टअप्स हैं उनका अग्रीमेंट हमारे साथ इक्विटी बेसिस पे है। तो दिस इज़ अनदर रेवेन्यू जनरेशन इंजन, नॉट फॉर मी, फॉर माई यूनिवर्सिटी, बट पाकिस्तान, क्योंकि हम वो भी बचपन से सुन रहे हैं नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एंड दिस दैट। तो वहाँ 4 स्टार्टअप्स को हमने बाकायदा IPO रजिस्टर करवाया, उनके ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराए, SECP रजिस्ट्रेशन उनकी हो रही हैं, उनको बाकायदा हमने बिज़नेस के तौर पे लॉन्च करके बिज़नेस एड्रेसेस दे के वहाँ बिठाया हुआ है, क्योंकि आपको पता है वो पूरा बिज़नेस हब है। वहाँ वो P2P, B2B, G2B, कोई बड़े बड़े डेलीगेशंस आते हैं, तो डेफिनेटली जब वो विज़िट करते हैं पूरी फैसिलिटी, तो वो दाऊद यूनिवर्सिटी का, उसका हमने नाम रखा है रिसर्च प्रोडक्ट डेवलपमेंट यूनिट। ओके, तो वहाँ वो 4 ऑफिसेस बैठे हैं। तो जब वो अपना बिजनेस कार्ड छपाएंगे तो उसमें एक एड्रेस ढंग का लिखा होगा, तो कोई उनको परसू करेगा ना। मेरा पॉइंट ये होता है कि आप उसी लैंग्वेज में बात करें जिस लैंग्वेज में वो फ्रेटर्निटी समझेगी। सही। तो ये जो हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर BICs के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, मेरा ख्याल है हम सबको थोड़ा सा बाहर आना चाहिए। और इवन HEC भी जो BEC को फ़ंड करती है, इनको चाहिए कि कोई एक ऐसा उसी मॉडल का एक फैसिलिटी बना लें जहाँ हर यूनिवर्सिटी को
जितने भी चाहिए ऑफिस स्पेसेस, पॉकेट ऑफिसेस दे दें, तो उससे ये होगा कि आप एक जैसे दफ्तर ख्वान है, आपने सुना होगा, Yes. उस तरह की जगह पे अगर मेरा स्टूडेंट प्रोडक्ट लेके बैठेगा तो उसके सेलिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना, बजाय इसके कि वो प्रोडक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर लेकर बैठा है। True. 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 सो ये वाला कंसेप्ट भी हम दाऊद में ला चुके हुए हैं। Very हमारा good. आरपीडीयू 1 साल से ऑपरेशनल, अब नेक्स्ट कोहॉर्ट जा रहा है Excellent. उसके अंदर। फिर आप आ जाएं, हम प्रोडक्ट बेस्ड अभी एक हमने एक पीएचडी निकाला है। सो पार्कोस ने वो हमारे साथ रिसर्च में कोलैबोरेशन किया। उनका कोई एक इनोवेटिव मटेरियल उन्हें चाहिए था अपने सैटेलाइट डोम के लिए, जो हमारा एक अभी फर्स्ट पीएचडी निकला है, वहाँ वो उसने वो इनोवेटिव मटेरियल कोई क्वार्ट्स के साथ रिसर्च करके, सो इट्स अ प्रोडक्ट बेस्ड पीएचडी। एनदर अभी हमारा एंग्रो के साथ हमारे एक रिसर्चर हैं फतेह सुमरो साहब, एक प्रोडक्ट उन्होंने बनाया फ्लाई ऐश के साथ, एक बॉटम ऐश के साथ। एंग्रो ने, हम 2 मिलियन जीती भी उनकी टीम, उसमें एनएडी और अदर यूनिवर्सिटीज़ वर देयर, वेरी रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटीज़। उन्होंने वो एक पेपर ब्लॉक बनाया उससे, लेकिन वो भी एक कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है उसके लिए एक प्रोडक्ट है, उसकी भी अभी हम कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और उसके साथ साथ हम एक हमारा है आपका आई वुड से ऐश प्लास्टिक, Okay. वो उन्होंने बॉटम ऐश से बनाया है, क्योंकि ये जो कार्बन क्रेडिट्स और ये जो हम क्लाइमेट चेंज से मिटिगेट करने के लिए जितने सोल्यूशंस पे काम कर रहे हैं, तो एंग्रो उसके अंदर काफ़ी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है उनका। तो वो हमारी यूनिवर्सिटी के साथ दे आर कोलैबोरेटिंग, और ये 2 प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह आपको नज़र आएंगे कमर्शियल हुए हुए। इसी तरह हमारी एक मास्टर्स की प्रोजेक्ट थी कन्वर्जन ऑफ ई बाइसाइकिल, वो अभी रेस्क्यू 1122 ने हमें दिए हैं 12 अपने नॉर्मल बाइसाइकिल्स के, इसको कन्वर्ट करें, वो सेल्फ चार्जिंग है। अच्छा. तो ये एमएस और पीएचडी के जो थीसिस है ना, वो अब शेल्फ नहीं हो रहे, True. That's great. वो अब किसी ना किसी इंडस्ट्री को फोकस करके किए जा रहे हैं, और वो फिर वहीं डिलीवरेबल भी उनका वहीं डिसाइड हो रहा है। तो ये 3 तो मैंने आपको हाईलाइट किया कि इंडस्ट्री को करीब लाने के लिए आपको उनकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। अभी 3 प्रोजेक्ट्स हमारे पीएचडी के चल रहे हैं। अब हम एएसआरबी में इस पर बड़ा फोकस करते हैं कि इसकी जो ये रिसर्च है 3 साल की, जो भी स्कॉलर है उसका एडवांटेज इसको कितना होगा आफ्टर 3 इयर्स। अभी तो नहीं है सैचुरेट हो गई कहीं, क्योंकि ये जब पेपर पब्लिश करने जाएगा तो पेपर इसीलिए पब्लिश नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि वो एरिया सैचुरेटेड होता है। सही. तो हम अब ये भी देख रहे हैं कि 3 साल बाद इसका क्या पोटेंशियल है, और ये क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अब हमारा एसआर भाई का डायरेक्शन भी बदल गया, और दाऊद में अब माशाल्लाह हर महीने एक एसआर भी होती है। एक्सीलेंट. व्यूअर्स आपकी राय जानना चाहेंगे यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स पे, इंटरनेशनली भी होती है, नेशनली भी होती है, और आई एम श्योर कि देयर मस्ट बी कंपटीशन बिटवीन प्रोविंसेस एज वेल, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, पंजाब, और वी होप टू सी सम यूनिवर्सिटी इन टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबली. मेरा थोड़ा सा इसका, आई हैव अ वेरी डिफरेंट एंड रादर कहना चाहिए वियर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मे बी फॉर फ्यू. देखें, व्हेन इट कम्स टू क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटीज़ लाइक हार्वर्ड, लाइक MITs, like you name it, like Purdue, Brown, Rice, Stanford. I think इनका एंडाउमेंट ही हमारे प्रोविंशियल बजट से शायद ज़्यादा होगा. ट्रू. सो आप एक ही यार्ड स्टिक से हम सबको अगर नापेंगे तो हम तो कभी भी हम वही रहेंगे, डाफ्स ही रहेंगे हम. ट्रू. ट्रू. ठीक है ना, और वो गुलिवर ही रहेंगे डाफ्स लैंड के. तो सही. पॉइंट इज़ दिस कि हम जो ये रीजनल रैंकिंग्स भी होती हैं इनकी, हम रीजनल रैंकिंग्स में जाते हैं. तो दाऊद ने पहली दफ़ा अपनी जब अभी हमारा डेब्यू ईयर था, हम 247 आ गए रीजन में, राइट. बट मेरा मानना ये होता है कि मैं जिस जगह रह रही हूँ, अब कोई भी मुझे XYZ दे दे, नो मैटर, कोई रेटिंग कर रहा है, कोई रैंकिंग कर रहा है, कोई स्कोर दे रहा है. पॉइंट इज़ दिस, अगर इफ़ आई टेक इट एज अ पेरेंट, सबसे नेकेड लिटमस टेस्ट क्या हो सकता है कि अगर आपका बच्चा या बच्ची एक यूनिवर्सिटी जिसको मेरे यहाँ की कोई भी लोकल रेगुलेटर या कुछ भी उसको कह दे जी टॉप 5 में है, आई डोंट वांट टू नेम एनी यूनिवर्सिटी, और आपके पास ऑप्शन हो उन 2 यूनिवर्सिटी जो टॉप में आई हुई हैं, और उसके साथ साथ आपके पास एक यूनिवर्सिटी और भी हो, लाइक मैं प्राइवेट सेक्टर में चले जाती हूँ, चले लम्स का नाम ले लेते हैं या किसी और का. तो अगर आपको फ़ी का कंस्ट्रेंट नहीं है, तो अगर आप वो जो जिसको X कहा गया है या जिसको Y कहा गया है, नंबर 1 नंबर 2,
अगर आप अपना बच्चा खुशी से वहाँ डालेंगे तो मैं समझती हूँ वो रैंकिंग ठीक है, लेकिन अगर आप उस 1 को छोड़कर फ़ी कंस्ट्रेंट ना होने के बाद आप लम्स ही जाना चाहेंगे तो रैंकिंग आपके सामने आ गई। सो आई वुड से कि यहाँ भी प्रोविंस टू प्रोविंस भी अगर आप बात करें या यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी बात करें तो पॉइंट वहीं आ जाता है। आई थिंक अब हमें अगर कुछ करना है अचीव तो हमें हर यूनिवर्सिटी को उसके सेट टारगेट्स खुद डिसाइड करके और रेगुलेटर को बताने पड़ेंगे कि ये हमारे चैलेंजेस हैं, अगर हम इनको मिटिगेट करके यहाँ से निकलेंगे तो हम उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कॉम्पीट करने के काबिल होंगे। इन दी गिवन सिचुएशन जो भी जिस यूनिवर्सिटी की है वो शायद वहाँ नहीं जा सकती, लेकिन आप उसे पुश करें नहीं, सब ने क्यूएस में इस बार फाइल करना है, कर तो देंगे, वो पैसे डॉलर्स में कमा लेगा क्यूएस वाला क्योंकि उसकी फ़ी होती है, या टीएचई वाला ले लेगा क्योंकि हमें कहा है एचएससी ने या फलाने ने कि आप सब ने डालना है। भाई डाल तो देंगे बट उसके लिए ग्राउंड तो हमें बनाने दें। तो हमें अपना हमें एक सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट जो भेजते हैं उसके अंदर हमें एक चैलेंजेस भी हम बता सकते हैं कि पहले हमारे ये चैलेंजेस हैं, इतने नंबर ऑफ़ पीएचडीज। मैं मिसाल दे रही हूँ, आपने क्यूएस की बात की, आपने नहीं की मतलब इंटरनेशनल रैंकिंग की बात की, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट। मुझे बताएं इस सिनेरियो में कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे और कितनी तादाद में होंगे। फिर एक उसका दूसरा पैरामीटर होता है इंटरनेशनल फैकल्टी। मुझे बताइए हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ कैन हैव दैट। हमारे और भी बहुत से कंस्ट्रेंट, ये नहीं कि हम हायर नहीं कर सकते, बहुत सारे और आपको पता है इंटीरियर मिनिस्ट्री ये वो काफ़ी कुछ इन्वॉल्व होता है उसके बीच में। फिर पे स्केल्स, अब मैं अपनी फैकल्टी को दूँ 2 लाख रुपए, उनको दूँ मैं $2000, तो डिस्पैरिटी आएगी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब यू नेम इट। तो जब आप क्यूएस रैंकिंग की बात करते हो तो ये ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ सारी कोई लाउजी हैं या कोई काम नहीं करा क्योंकि हम टॉप 100 में नहीं हैं। भाई ये वाले भी तो चीज़ें आप प्लेइंग फील्ड नहीं है बेसिकली। पॉइंट इज दिस, हम वो सारे पैरामीटर्स या सारे बॉक्सेस को चेक कर भी नहीं सकते ना। एंडाउमेंट का साइज ही उसके नंबर्स हैं। अब बहुत सारी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास अभी तक एंडाउमेंट है ही नहीं, इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाया। सही। और प्रोविंस वाइज अगर आप बात करते हैं तो प्रोविंस वाइज तो मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से एचएससी इस वक्त स्टैंडर्डाइज कर रहा है चीज़ों को, जहाँ जहाँ भी हमारी काउंसिल्स हैं, एक्रेडिटेशन काउंसिल्स हैं, अब डिपेंडिंग अपॉन द पीईवी जो हमारे पास प्रोग्राम एवैल्यूएटर आता है वो कितना लिनियंट है या वो कितना स्ट्रिक्ट है, उसके हिसाब से आपको वो उनकी एक्रेडिटेशंस होती हुई भी कहीं कहीं हमें दिखता है यार ये कैसे हो गई, और कहीं कहीं हमें दिखता है यार इनकी नहीं हुई। दोनों चीज़ें दिखती हैं। तो ये तो खैर हर जगह है, इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, हर जगह ऐसे ही होता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट आई थिंक रेटिंग रैंकिंग से ज़्यादा हमें ग्रेडियंट चेंज के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ है, वो फंडामेंटल एलिमेंट है जिससे यूनिवर्सिटीज़ को आप सबको एट पार ला पाएंगे। जब सब एक ज़ीरो ग्राउंड पे आएंगे ना, जो ऑलरेडी ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, दे आर द टियर 1, उनको आप कह दें कि जी यू आर गुड टू गो। मैं जब USAID में थी, ऐसा प्रोजेक्ट हम कर रहे थे, हमने वहाँ 3 टीयर्स की यूनिवर्सिटीज़ उठाई, टियर 1, टियर 2, टियर 3। इसलिए नहीं कि कोई कम अच्छी है या कोई वो, उनके जो गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स थे उन बुनियाद पे हमने ये क्लासिफिकेशन किया था, विद नो ऑफेंस मेंट टू एनीबडी, बिकॉज उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स ऐसे थे कि वो कभी भी टियर 1 के लेवल को मीटअप नहीं कर सकते। एक की लाइब्रेरी में 32,000 किताबें, एक में 3,000 भी नहीं है, और वो बाय भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। वो पहले सैलरीज देंगे या बुक बाय करेंगे। तो ये सब कुछ हमने बड़ा टेक्निकली सोचा था उस वक्त, और हमने यही कहा था कि अगर हम टियर 3 यूनिवर्सिटीज़ को अपने 5 साल में टियर 2 में ग्रेजुएट करा पाते हैं, और टियर 2 को टियर 1 में ग्रेजुएट करा पाते हैं, और टियर 1 का ग्रेडियंट चेंज करा पाते हैं, तो दैट्स अ सक्सेस ऑफ द KPI हो गया मेरे लिए, या इंडिकेटर हो गया कि मैंने प्रोजेक्ट अच्छा किया या बुरा किया। अब ये वाला कंसेप्ट हमें देखने की ज़रूरत है कि हम एक यूनिवर्सिटी को उसकी एग्जिस्टिंग ग्राउंड से कितना ऊपर लेकर जाते हैं, नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं। और फिर आप सोचें, जब आप टियर 1 में आ गए, यू हैव अ वेरी लिटिल रूम टू एक्चुअली शो योर परफॉर्मेंस। वेरी राइट। मैं अगर लम्स की कल को रेक्टर लग जाऊँ, मैं क्या उसमें नया ऐड ऑन कर दूँगी? आई विल बी जस्ट अनदर वाइस चांसलर और रेक्टर, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट देयर फुलेस्ट पोटेंशियल टू मी। लिटिल बिट वैल्यू एडिशन, येस, सेम गोज विद मेनी यूनिवर्सिटीज़ इन कराची। तो मुझे इसी तरह मैं हमेशा अनसेचुरेटेड जगहों पे जाती हूँ कि जहाँ आई कुड एक्चुअली मेक इट विजिबल कि व्हाट आई कैन डू। आपकी विजनरी प्रेजेंस का एक फ़ायदा लेंगे। हाउ शुड यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्यूचर इन पाकिस्तान लुक लाइक इन 2050 फॉर एग्जांपल? आई वुड से कि देखें, इट्स वेरी sort of a intangible question to me. Yeah.
because the pace of evolution of technology, ये तो खैर I completely disagree with this कि there will be no ह्यूमन टीचर और कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं रह जाएगा. इसका कोविड ने एक बड़ा ज़बरदस्त हमें एक बताया कि जब बच्चे ऑनलाइन टीचिंग में थे तो वो एंटाई सोशल हो रहे थे, उनके अंदर से टॉलरेंस ख़त्म हो रहा था, उनके अंदर से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन टॉलरेट करने का पोटेंशियल ख़त्म हो रहा था, क्योंकि जब आप एक क्लासरूम इन्वायरमेंट में होते हैं तो वो शेयरिंग, केयरिंग, आपको इमोशनल ट्रॉमा हैंडल करना या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कैटर करना, तो ये सब कुछ के लिए तो आपको फिजिकल इन्वायरमेंट इज़ रिक्वायर्ड. आप अगर समझते हैं कि यूनिवर्सिटी का काम खाली नॉलेज बेस में एडिशन करना है, तब तो ठीक है, आप कह लें कि एआई पढ़ा देगा और फलाना से काम चल जाएगा. बट मैं फिर ये कहती हूँ कि एआई को प्रॉम्प्ट कौन करेगा? अ ह्यूमन बीइंग. एआई को आपने एज अ टूल यूज़ करना है या उसको अपने ऊपर आपने एज अ मास्टर यूज़ करना है, ये हमारी चॉइस है. मैं समझती हूँ आप जितने मोनोटोनस होंगे अपने रूटीन्स में और अपने करियर में, उतनी जल्दी एआई आपको मास्टर कर लेगा. लेकिन आप जितने ज़्यादा कहना चाहिए एक्सपेरिमेंटल होंगे, जितने ज़्यादा एवर इवॉल्विंग नेचर के होंगे या जितने ज़्यादा आप एडेप्टिव लर्नर होंगे, एआई आपको बीट नहीं कर सकता. सही. क्योंकि एआई ने आपका, हम जब न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ते थे जो एआई का फंडामेंटल ब्लॉक है, तो न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना पड़ता था, डिसीजन रूल्स बनते थे, उसके बाद फिर एक डिसीजन मेकिंग एआई करके देता था. ये सारा कुछ इंटीग्रेट होकर एआई बना है. तो आप जितना उसके डिसीजन रूल्स को चैलेंज करते जाएंगे, उसको हर बार नए चीज़ से आना पड़ेगा. लेकिन आप लेट सपोज मैं रोज़ सुबह बीन काउंटर की तरह 9 बजे सीधा दफ्तर पहुंच जाऊं, 2 बजे बटन खोलूं, 2:30 बजे बटन बंद कर दूं, तो एआई के लिए मुझे मास्टर करना बड़ा आसान है. और आप बड़े इजीली सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं एआई से अगर आप इतने मोनोटोनस हैं अपने रूटीन में. लेकिन अगर आप एवर चेंजिंग हैं, सही, और आपकी अपनी अडेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स दी सिचुएशन या आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो इन्फॉर्म डिसीजन है बेस्ड अपॉन द डेटा प्रेजेंटेड टू यू, और एट टाइम्स आपको उसमें ईक्यू भी ऐड करना पड़ता है जो एआई मिस करता है. तो वो वाली चीज़ें अगर आप मैं हमेशा से एक जुमला कहती हूँ कि द मोर अडेप्टिव यू आर, मोर एक्सेप्टेबल यू विल बी इन द फ्यूचर. 2050 की यूनिवर्सिटी के लिए भी मेरा वही जुमला है कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आप कितने फ्लेक्सिबल हैं टू अडॉप्ट द चेंजेस. अगर आपने स्ट्रिंजेंट रूल्स बनाए हुए हैं, स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, फॉर एग्जांपल हमने अपनी यूनिवर्सिटी में जो रमज़ान में वर्क फ्रॉम होम हम करते हैं, इट्स अ प्रैक्टिस एंड हाफ. जस्ट लाइक कि अभी हमें एकदम से हिट किया तो हमें नहीं प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि हमें पता है हमें हर रमज़ान और आशूरे के हर 10 दिन हम ऑनलाइन जाते हैं जस्ट फॉर अ टेस्टर, और मनी भी सेव करते हैं. तो आपको इसी तरह से ना चीज़ों को कुछ को ऐसे टेस्ट करते रहना चाहिए. और एडेप्टिव यूनिवर्सिटी को ओवरऑल एज अ माइंडसेट होना चाहिए. एक लीडर के फेस पे नहीं होती वो चीज़. आपका सिस्टम इतना प्रोन टू अडेप्टेशन होना चाहिए कि वो हर नई आने वाली चीज़ को आराम से वेलकम कर सके, लेकिन उतना ही जितना के रिक्वायरमेंट है. Very right. It's like a salt. AI is like a salt. You have to take it as per taste and as per requirement. And take it as an opportunity rather than a threat. And मैं ये कहती हूँ जिस दिन आपको वो जो एक मुझसे चाइना में किसी क्वेश्चन ने पूछा कि where will you draw a line कि when to stop using AI or chat GPT or something like that, मैंने कहा the moment I feel that this is actually diminishing my own natural skill, I would stop using it. What I do, I make my own drafts. I only give it to AI to refine it. I don't ask AI to make a draft for me. Right. So abolishing your skill and polishing your skill. You have to decide what you want to do with AI. Fasten your seat belts. Some quick questions. Yes. Right? Degree or a skill? Obviously a skill. One skill that every engineer must have. Communication. One book that would you like every graduate to read? I think it's a very misfit question in this era. Okay. Pakistan's biggest untapped opportunity in technology. Multi-wafer technology. One reform that would you like to implement overnight in Pakistan's education system? That's undoable. Overnight, nothing can change except for your own approach. One word for the future higher education. Adaptive. And what is your brutal truth about Pakistan's education system? Over stringent regulations. Academia says
there is no academic independence, freedom, right? Vice chancellors are not free, professors are not free, and a lot of things are being spoon fed. There's other angle as well. They say the vice chancellors have converted universities into their fiefdoms, their jagirs, or academic council ho, syndicate ho, senate ho. They are mere rubber stamps for the wishes of vice chancellors. True? Uh, Once again, it's case to case because आई वुड से कि थोड़ा सा यहाँ एक सख्त बात कहूँगी. देखें, द बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज़ व्हेन अ वाइस चांसलर हेड्स द सेनेट. However, Senate has to be presided by the Pro-Chancellor or the Chancellor. और सॉरी CM साहब, बिकॉज चांसलर तो हमारे गवर्नर हैं, बट जो CM साहब हैं एज पर एक्ट. तो होता यह है कि जब गवर्नमेंट के ऑफिशल्स उस जगह पे आकर अपना रोल प्ले नहीं करेंगे तो फिर वाइस चांसलर को तो आप खुद ही कह रहे हैं ना कि वो अपने मर्ज़ी की चीज़ें करवा ले. और दूसरी बात, ठीक है, हमारे एक्ट में लिखा होता है कि कोई भी, हाँ, फाइनेंशियल आप कोई बिगाड़ नहीं कर सकते. फाइनेंशियल आप कुछ भी करेंगे, आपको एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस लेनी है CM के साथ. यार, फाइनेंस के अलावा जो बिगाड़ हम कर देंगे उसको कौन, मतलब हु विल टेक केयर ऑफ दैट. तो हमें थोड़ा सा उस पैसों वाली बिगाड़ से आगे भी सोचना चाहिए. और दूसरी बात कि पैसों की बिगाड़ पे भी मैं बात करूँ, देखें FPC के, मैंने कहा ना, हमारे मुल्क में कानून बड़े ज़बरदस्त हैं, इन्फोर्समेंट अच्छी नहीं है. अब अगर मैं कहूँ कि जी हमारे यहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस का भी होता है FPC में. FPC द फर्स्ट थिंग ना, जहाँ से रिकमेंडेशन ओरिजिनेट होती है. तो वो अगर वहीं आके हमें टाइम दे लें थोड़ा सा, हर यूनिवर्सिटी को हमारे बजट्स को सीधा करवा दें, हमारे जो गलत अलाउंसेस हैं उनको वहीं स्नप कर दें. क्योंकि एक वाइस चांसलर को तो देखें अपना एक फैकल्टी को भी फेस करना है. वो उसका प्रेशर लेकर कोई ले लेता है, कोई नहीं लेता, लेकिन जो ले लेता है उसको आप क्वेश्चन दे देना. आप आके उसको कह, नहीं जी ये नहीं हो सकता, गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ. तो वो हमें अपनी प्रेजेंस वहाँ उन फोरम्स पे दें, फिर हमें गाइड करें. और अगर हम उसको फिर भी डिविएट करें, हम उसको फिर भी ओवर स्टेप करें, तो हम कसूरवार हैं. थोड़ा कसूर उधर भी है कि आपके पास जहाँ जहाँ प्रोविज़न है हमें पकड़ने की, हमें सिखाने की, वहाँ हमें ज़्यादातर यही होता है, दे आर बिज़ी. तो फिर तो ये होगा. आप थोड़ा सा तो ये समझें कि जो ये एक्ट बना है, किसी लोगों ने मिलके इतना सोच के बनाया है, इसके अंदर जिन लोगों की मैंडेटरी प्रेजेंस डाली गई है वो कुछ सोच के है. अब आप क्या, नहीं जी बस ठीक है. मैं एक बात, बड़ा कड़वा सच है, बट आई फील सो, हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा कहना चाहिए फॉर ग्रांटेड सेक्टर है, मैं पैसे देने की बात नहीं कर रही, हर चीज़ पैसा नहीं होता. वो कहते हैं ना, मेरे वालदैन भी कहते हैं यार पैसे नहीं चाहिए, वक्त चाहिए. तुम चाहिए हो. हम भी वही कहते हैं, चाहे CM साहब हों, चाहे हमारे प्रो चांसलर साहब हों, चाहे हमारे सेक्रेटरी साहिबान हों, जिनकी हमें जहाँ जहाँ ज़रूरत, जहाँ जहाँ एक्ट के तहत हमें ज़रूरत है, हमें हमारी ज़ाती फरमाइश नहीं है, वहाँ हम भी कहते हैं कि सर मसला सिर्फ ये नहीं कि आप ग्रांट्स दे रहे हैं, आप हमें अपना वक्त भी दें ना. हमें वो सिखाइए जो हमें नहीं आता. अगर हम बुरे एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो इसीलिए तो वो कॉम्पोजिशन है FPC की जो है कि UNB के सेक्रेटरी साहब भी बैठेंगे, तो फाइनेंस प्लानिंग के भी सेक्रेटरी साहब वहाँ तशरीफ़ लाएंगे, वो वाइस चांसलर को सिखा देंगे, 1-2 मीटिंग में हम सीख जाएंगे. तो सेनेट के अंदर भी यही है कि अगर CM साहब, मैं समझती हूँ 4 साल में कम से कम एक सेनेट तो CM साहब को खुद प्रिजाइड किसी यूनिवर्सिटी की सिर्फ इसलिए करनी चाहिए कि फील्ड एनालिसिस अलग ही होता है सर. मेरी लिखी हुई रिपोर्ट, किसी और की दी हुई इनपुट, आप जब एक दिन एक सेनेट प्रिजाइड करके 4 साल में एक तो हक बनता है हमारा कि एक CM साहब खुद करें प्रिजाइड, आएँ, स्टेट ऑफ अफेयर्स चेक करें, चाहे पहली सेनेट अटेंड कर लें, चाहे लास्ट कर लें, या मिड की कर लें, टू असेस कि यार शुरू कहाँ से हुआ था, लेकिन एक तो कीजिए. क्योंकि कॉन्वोकेशन में वो नहीं होता जो हम सेनेट में कर रहे होते हैं. तो ये वो गवर्नेंस के भी कहीं ना कहीं इश्यूज हमारे बाद भी तो हैं. सही. तो एक्ट जो कह रहा है आप पूरा वैसा करा दें, फिर क्या होता है, जब प्रिजाइड नहीं करते तो फिर वो कॉन्फ्रेंस के लिए हम भी पिलर टू पोस्ट भागते हैं, फिर वो कहीं स्टक हो जाता है, फिर हम अपना रैशनल कन्वे नहीं कर पाते प्रॉब्ली, क्योंकि कागज़ पे तो वो सेक्रेटरी की ज़मरी है ना, हमारा रैशनल उस तरह कन्वे नहीं हो रहा. वो कहते हैं ना, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता. तो वो एक गैप, कम्युनिकेशन गैप भी ख़त्म होने की ज़रूरत है. तो वो वाइस रॉयज़ नहीं बनेंगे. How has been your
experience with student activism, student unions, student associations? What is? It's all about your own कहना चाहिए resilience against them. यूनियन से मुझे कोई इख्तलाफ कभी भी नहीं रहा. यूनियन का टर्म हम यूज़ करें अगर, स्टूडेंट यूनियन भी वैसी चीज़ है जैसे डेमोक्रेसी के बारे में कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों की लग्जरी होनी चाहिए. लेकिन स्टूडेंट यूनियन का जो एक कंसेप्ट है, चाहे वो आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉ करें, हार्वर्ड से ड्रॉ करें या कहीं से ड्रॉ करें, वहाँ पॉलिटिकल तो कहीं भी नहीं है, सब ए पॉलिटिकल है. तो वो अगर उस पर कोई यूनिवर्सिटी के अंदर कोई स्टूडेंट बॉडी राजी, नई यूनिवर्सिटी इसके लिए तो बड़ा आसान है. मैं रोड में होती तो शायद कर चुकी होती और कर भी लिया होगा शायद, या किसी और यूनिवर्सिटी. लेकिन जो ये पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी 60-60 साल उम्र हो गई है, जिनका दे थ्राइव ऑन केओस रादर, तो वहाँ पे ये है कि इस वक्त उन आपस में जो टॉलरेंस है वो बड़ी कम है. हम तो यूनियन का इलेक्शन अनाउंस कर दें, लेकिन ये क्या तय है कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आएगा उसको बाकी पॉकेट्स उसी तरह एक्सेप्ट करेंगे. तो वो यही है कि इट्स बेटर कि हम पहले उतनी मेचोरिटी ग्रो होने दें. हाँ, हम स्टूडेंट वीक मनाते हैं, उसमें पूरा हफ्ता स्टूडेंट के हवाले यूनिवर्सिटी होती है. और उसमें वो मिलजुल के कोई मूवी शो प्लान करता है, कोई कार्निवल प्लान करता है, कोई पेड गेम्स होते हैं, रोबोटिक्स के कोई गेम्स होते हैं, सो दे डू इट. बट वो सब मिल के कर रहे होते हैं. उसमें कोई प्रेसिडेंट या कोई डिप्टी प्रेसिडेंट, कोई इंटाइटलमेंट्स नहीं होती ना, तो झगड़ा नहीं होता. तो वो इंटाइटलमेंट्स के लिए अगर ये तैयार हैं स्टूडेंट्स कि किसी एक को वो मानने को तैयार हैं और फेयर इलेक्शंस के बाद वो रिज़ल्ट लेने को तैयार है, और इलेक्शंस के बाद सब वापस से स्टूडेंट बनने को तैयार हैं, ऑपोजिशन और वो राइट विंग और लेफ्ट विंग ना रहें और वापस से मर्ज हो जाएं और फिर अपने सारे मसतालबात. अव्वल तो देखें, मेरी यूनिवर्सिटी में तो इलेक्शंस ना आप कोई एसोसिएशन के होते हैं, क्योंकि जब आपके पास कोई इशू ही नहीं है तो आप पॉलिटिक्स कीजिएगा किस पे. पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट इशूज़. तो जब आप एज अ वाइस चांसलर कोई इशू छोड़ेंगे ही नहीं, ऑटो पे वो इश्यूज़ रिजॉल्व कर देंगे जो जेन्युइन है, और जो इनजेन्युइन है वो यूनियन भी आ जाए तो नहीं करा सकती. सही सही. तो पॉइंट ये है कि ये सारा कुछ एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसमें मैच्योरिटी की भी ज़रूरत है. विद टाइम जो आएगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी वो डिबेटिंग प्लेटफॉर्म्स हों जहाँ लोग एक दूसरे की राय से इख्तलाफ भी करना चाहें और उनको फतवे भी ना लगें और उनको कोई लाइफ लॉन्ग एनिमोसिटी में ना कन्वर्ट कर दे. ये एक बड़ा फैक्टर है हमारे यहाँ ना. हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को उस हॉल में नहीं छोड़ के उठते. हम उसको फिर अपने किसी ना किसी कोई ईगो हर्ट हो जाती है हमारी. ये कहा था. हाँ, तो वो बस वो सारी उम्र रहती है. तो वो जब तक वो मेच्योरिटी नहीं आ जाए, आई वुड लव कि स्टूडेंट यूनियंस हों, मतलब एक ही यूनियन हो और वो सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती हो, और वो जो भी इवेंट स्टूडेंट के हों उनकी विश एंड विल के मुताबिक एज़ पर कल्चरल नॉर्म्स, एज़ पर एजुकेशनल नॉर्म्स. क्योंकि अब एजुकेशनल इदारे में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो सकती, भले सारे स्टूडेंट मेजॉरिटी में कहें तो मेजॉरिटी कैन नॉट बी राइट. तो बात यह है कि जो चीज़ है वो उस तरीके से जब स्पिरिट में हो सकती होगी तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू गो फॉर इट. Before I ask you for like message for teachers, parents, students, government, citizens, एक ये पूछूंगा कि you have to send your child to a university in Pakistan and they want to study humanities. कौन सी यूनिवर्सिटी में भेजेंगी? ह्यूमैनिटीज़ करना चाहता है. इट्स अ टफ क्वेश्चन. आई थिंक आई वुड गो फॉर माई सन एक्चुअली गॉट एडमिशन इन लाम्स बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डू बिजनेस. ही गॉट एडमिशन इन लाम्स. तो और मेरा जो दूसरा बेटा है बायोलॉजी करना चाहता था, ही गॉट एडमिशन इन नस्ट. तो आई मेड देम अप्लाई इन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो. बट ह्यूमैनिटीज़ का आई नेवर थॉट ऑफ इट, क्योंकि हमारे यहाँ ह्यूमैनिटीज़ में कोई था नहीं, तो मैंने कभी उस नज़रिया से देखा नहीं. इंजीनियरिंग में कहाँ रिकमेंड करेंगी? आई थिंक आई वुड प्रेफर टू गिव हिम, बिकॉज मुझे नस्ट का एक्सपोजर इस तरह से है कि मैंने वहाँ जब USAID का मैं काम कर रही थी, क्योंकि उनका जो इंडस्ट्री एकेडमिया का जो वो है ना लिंकेज है, वो बड़ा रोबस्ट है और अच्छा क्लोज लिएजन है. तो वो मतलब वहाँ बच्चे की, और फिर वहाँ थोड़ी सी ना एंटरप्रेन्योरल साइड भी बच्चे की वो अच्छी पॉलिश करते हैं. वो लम्स भी करता है. बट आपने इंजीनियरिंग का सवाल पूछा है, तो आई थिंक अगर हम फ्लैगशिप प्रोग्राम्स वाली यूनिवर्सिटी में जाएं, क्योंकि लम्स को हम बिजनेस स्कूल में जानते हैं, तो मेरा ये बड़ा एक थोड़ा सा हूँ मैं इस मामले में कंजर्वेटिव कि जिस यूनिवर्सिटी का जो फ्लैगशिप है वो उसी पे रहे तो बेहतर होता है. बट ठीक है, अब विद ऑल दी फाइनेंशियल रीजंस हम अपने डिफरेंट एरियाज भी एक्सप्लोर करते हैं. तो आई थिंक मेरी नस्ट वुड बी माई चॉइस. ओके. एंड मेडिसिन? मेडिसिन में आई हैव नो आइडिया अबाउट ये आपका किंग एडवर्ड सुना है, बहुत अच्छा है. बट ये है कि आई हैव सीन डाउ मेडिकल, अब डाउ यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंसेज, मेनी
पिग एलुमनाई, तो आई थिंक दिस मस्ट बी डूइंग समथिंग गुड, तो मेरा ख्याल है मैं शायद डाओ ही भेजूँ. Your message for students. Students, they are very smart, they don't need any message. All they need is to be like, take control of what they know and don't be the prey of false and fake information, and they should be aware of what authenticity and integrity of the resource means. For parents. Yes, for parents. Being a parent, मैं आई कैन वाउच फॉर इट कि दीज डेज जो हमारे नए पेरेंट्स हैं, दे आर लाइक ओवर डिमांडिंग. आई थिंक दे हैव टेकन अवे ऑल द फ्रीडम फ्रॉम देयर चिल्ड्रन टू ग्रो एज दे वांट टू ग्रो, और वो अपने ड्रीम्स उनसे फुलफ़िल कराने के चक्करों में होते हैं. हाउएवर कि अगर कोई टीचर उन्हें स्कोल्ड कर दे तो हमारे पेरेंट्स बड़े पजेसिव होके आ जाते हैं. खुद तो वो हद दर्जा स्पॉइल कर रहे होते हैं, लेकिन जो बच्चों की एक सोशल फैब्रिक ख़राब इसलिए हो रहा है कि फैमिली स्ट्रक्चर हमारा काफ़ी तितर बितर हो गया है. राइट. और हम जो एक फैमिली टाइम गुजारा करते थे, चाहे वो डिनर टेबल में हो, अब होता ही है कि पेरेंट ने देर में खाना है, बच्चे ने 9 बजे सोना है, वो खा पी नैनी के साथ सो गया. और अगर आप थोड़ा मिडिल क्लास की तरफ आ जाएं तो वहाँ जब बच्चा थोड़ा सा भी कॉलेज गोइंग होता है तो वो अपने अम्मी अब्बा को कहने लगता है. मैं अपने ओरिएंटेशन में पेरेंट्स को बोलती हूँ और बच्चों को बोलती हूँ कि तुम अपने पेरेंट्स से बड़े कभी भी नहीं हो सकते. और भले वो कॉलेज गए या नहीं गए, क्योंकि कोई हमारे यहाँ कारपेंटर का बच्चा है, कोई रिक्शा वाले की बेटी है, एंड आई रिस्पेक्ट देम ऑल कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचा और यहाँ भेजा. तो वो क्या करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप के साथ ना दे स्टार्ट प्लेइंग. आपको क्या पता, बस ऐसे ही है, यूँ होता है. तो मैं उनको कहती हूँ नहीं, आप पूछे नहीं पता तो हमें बताओ ना. सो पेरेंट्स को चाहिए कि वो ये याद रखें कि बच्चा 16 साल का हो जाए या 60 साल का, माँ बाप वही हैं, लास्ट वर्ड उन्हीं का ही होना है. और बच्चों को भी ये याद रखना चाहिए कि जो माँ बाप आपके बारे में इतना सोच के आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में दाखिल कर रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं कर रहे कि आप उन्हें रोज़ ये फील कराएं कि उन्होंने नहीं पढ़ा लिखा. उनका जहन पढ़ा लिखा था तो आप किसी अच्छे इदारे में हैं. सो ये एक रिस्पेक्ट लेवल मेंटेन करें, अपने पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस भी लिफ्ट अप करें साथ साथ, बजाय इसके कि उन्हें आप एम्बेरस करते रहें. तो ये जब चीज़ें साथ सब आपस में ठीक होंगी, कल्चरली तहज़ीब और तमीज़. अब हम लिबरलिज़म के नाम पे कुछ ज़्यादा ओपन भी हो गए हैं. बहुत सी बातें जो हम अपने वालिदैन के साथ करना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते थे, आज बच्चे बोल के उठ जाते हैं. मैंने बहुत से बच्चों को देखा है बोलते हुए अम्मियों को, आपका दिमाग ठीक है. एंड आई वाज लाइक यार हाउ कैन यू, मतलब कुछ भी है, कोई और तरीका हो सकता है. तो वो हमारे बच्चों को ना, मसला ये नहीं है कि वो बदतमीज़ी करें, उन्हें पता ही नहीं इसके अलावा ये कैसे बोला जाता है. वो कहना जो चाह रहे होते हैं वो उनको कहना नहीं आ रहा होता. तो ये थोड़ा सा बच्चों के ऊपर टाइम लगाने की ज़रूरत है पेरेंट्स को. और इनको ये नहीं सोच लेना कि अब यूनिवर्सिटी के हवाले कर दिया, भाई मेरे पास तो वो अडल्ट आता है, एक स्लेट, मेरे पास तो वो वोटर बनकर आता है. अब मैं उसको सिर्फ उसकी प्रोफेशनल नीच दे सकती हूँ, थोड़ी बहुत दुनिया की तमीज़ दे सकती हूँ, लेकिन जो उसको आपने सिखाना है अर्ली एजेस में, वो आपने ही सिखाना है. तो ये थोड़ा सा पेरेंट्स को याद रखना चाहिए कि ना स्कूल में ना अब जमा ना करा कर आ जाएं. अब बच्चे जमा करा के आ जाते हैं लोग स्कूल में. जैसे हम बैंक में पैसे जमा करा के भूल जाते हैं ना, उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी बैंकर की जिम्मेदारी है, तो अब बच्चों को जमा करा के आ जाते हैं लोग, दाखिला नहीं कराते. तो वो जमा ना कराएं, वो बच्चा आप ही का है, वापस आप ही के पास आना है, उससे पूछे क्या हुआ है. Some literally say कि हम स्कूल में जमा करा के आए बच्चा. तो मैं ये कहती हूँ भाई बच्चे को जमा ना कराएं, वो आप ही का बच्चा, उसका दाखिला कराएं, वापस उसको घर आके पूछें बेटा आज क्या किया, टीचर ने डांटा तो क्यों डांटा, तुमने क्या किया था. दूसरा जवाब ये भी तो हो कि तुमने क्या किया था. सो सारी प्यार मोहब्बत से बच्चे की डांट पे नहीं आनी चाहिए. तो ये बहुत सारे पेरेंटिंग के इशूज़ हैं. आई थिंक मेरा ख्याल है मैं रिटायरमेंट प्लान यही करूँगी कि पेरेंटिंग के ऊपर कोई काउंसलिंग शुरू करूँगी. एक टीचिंग पे भी काउंसलिंग करें. हाउ अबाउट टीचर्स? टीचर्स, यस, देखें टीचर्स हमारे यहाँ ना बड़े अलग अलग, मेरे अपने ही दाऊद में अगर मैं देखूँ, कुछ ऐसे हैं कि स्टूडेंट उनकी तारीफ़ें करते हैं जब वो पास आउट हो जाते हैं और वो असल टीचर होते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं जिनको पता है कि हमने कुछ भी कर लें, इन्होंने हमें पास भी करना है, इन्होंने सब करना है, और उनको वो बाद में बुरा भला कह रहे होते हैं. तो मैं हर टीचर को कहना चाहती हूँ कि उस वक्त की इंस्टेंट फीडबैक से बेहतर है कि आप लॉन्ग टर्म फीडबैक रखें अपनी. और हमेशा कड़वी गोली कड़वी लगती है जब आप गले से निगल रहे होते हैं, लेकिन जब वो 8 घंटे बाद अपना असर दिखाती है
तो फिर याद आता है मेरी तकलीफ़ उस गोली से दूर हुई थी, तो वो गोली बने जो उस बच्चे की उस तकलीफ़ को दूर करे। तकलीफ़ से मेरा मतलब है वो जो नॉलेज का गैप है उसको फिल करे, और जब वो बच्चा कभी उस नॉलेज को रिप्रोड्यूस करे कहीं, तो उसे याद आए कि ये मेरा वो टीचर था जिसको मैं उस वक्त समझ रहा था कि ओवर स्ट्रिक्ट है, या पता नहीं बस इन्हीं को ही सब आता है, सारा आज ही पढ़ा देंगे। ये हम सुनते हैं ना कराची में बच्चों से। तो टीचर्स के साथ यही है, और टीचर्स के साथ अब जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो शायद मेरे टाइम के टीचर पे नहीं था, यानी जब जो मुझे पढ़ा रहे थे, मैंने भी वो चैलेंज फेस किया जब मैं पढ़ा रही थी। वी हैव टू कीप लर्निंग, वी कांट से कि वी नो इट ऑल। और बच्चा अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो हैव करेज टू से कि मैं आपको अभी नहीं मालूम, कल देख के बताऊंगा। आपको बच्चा रिस्पेक्ट करेगा बजाय इसके कि आप उसे कोई ऐसा जवाब दें जिसको उसे अच्छी तरह पता है कि आप गलत बोल रहे हैं। तो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा सारी ज़िंदगी, क्योंकि आपने या तो उसको डांट दिया उसके जवाब में, या आपने इधर उधर कर दिया सवाल। आप उसको पिन पॉइंट बोल दें कि बेटा मेरे नज़र से नहीं गुजरा, अच्छा है तुमने मुझे टॉपिक दिया, आई विल वर्क ऑन इट एंड इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वी विल हैव अ डिबेट ऑन इट। एक चीज़ जो और मैं टीचर्स को, यूनिवर्सिटी टीचर्स को कहना चाहती हूँ, कॉलेज टीचिंग और यूनिवर्सिटी टीचिंग में फ़र्क क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारा काम है बच्चे की लर्निंग स्टिमुलस को ट्रिगर करना, उसको सिखाना नहीं। वो खुद लर्न करेगा, आप सिर्फ ट्रिगर कर रहे हैं, उसकी क्यूरियोसिटी को स्टर करें। ये है हायर एजुकेशन, ये है टर्शरी एजुकेशन। हाई स्कूल तक आपको उसको थोड़ा सिखाना होता है। मैं इसको हमेशा कहती हूँ कि 4 मोड होते हैं, डिक्टेशन मोड होता है, कोचिंग मोड होता है, पार्टिसिपेशन मोड होता है और डेलीगेशन मोड होता है। अगर मैं इसको एकेडमिक्स के ऊपर मैप करूँ तो जब बच्चा प्राइमरी में होता है या प्री प्राइमरी से प्राइमरी में होता है तो वो टोटल डिक्टेशन मोड होता है, राइट। ठीक है। फिर आप आ जाएं एलिमेंट्री से हाई स्कूल तक, वो आपका टोटल कोचिंग मोड होता है, राइट। और फिर आप यूनिवर्सिटी के 2 साल 4 साल उठा लें, वो पार्टिसिपेशन मोड होता है, और जब आप पोस्ट ग्रेजुएट में जाते हैं वो डेलीगेशन मोड होता है। राइट। तो बच्चे के साथ साथ आप भी अपना पेडागोजिकल मॉडल चेंज करें। You cannot be always in directive mode with PG as a student. We cannot be in the delegatory mode in the pre-primary. So we need to know these levels. Thank you very much, Dr. Samreen. It was very, very educating for me as well, and it will be very engaging for the viewers. Thank you very much for being with us. Pleasure is all mine. Thank Thanks you. for having me Thank once you. again. Thank you. Thank you.